جی مشائخ کیسے ہیں آپ لوگ؟ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ شیخ اچھے ہیں ماشاء اللہ. لیٹ بند کر دو. شیخ کیا نام ہے آپ کو سعودی میں جو ہے پانی کے ڈبہ چلے ماشاء اللہ سارے کے سارے لوگ ہمارے تقریباً پہنچ چکے ہیں اور ماشاء اللہ بڑی خوشی کی بات ہے. بڑی اس ایک دو ہفتے کے اندر جو ہمارا اتل پتھل رہا ہے وہ بڑے ہی کرب اور بڑے ہی دردناک رہا ہے، جس کی وجہ سے ہم سب ذرا پریشان سے رہے ہیں. بہرحال ابھی معاملہ کچھ حد تک جو ہے مندمل ہوا ہے اور ہم لوگ ذرا ابھی آرام میں ہے. اللہ ہم سب کو ہمیشہ جو ہے اسی طرح سے ہنستا مسکراتا رکھے، آمین یا رب العالمین. جی ہمارے خطیب صاحب عبدالواحد اثر انصاری صاحب وہ بھی آ چکے ہیں، تشریف لا چکے ہیں. اللہ آپ کو سلامت رکھے. کیسے ہیں آپ عبدالواحد صاحب؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. موبائل کو ذرا چلا لیجئے. جی موبائل کو ایسے کر لیجئے تو تھوڑا آپ کے پکچر وغیرہ ذرا اچھے آئیں گے، پورے بھرپور. اصل میں لائٹ نہیں بس ہے نا، لائٹ نہیں ہے، ابھی بارش ٹھیک ہو ہے، رہی ہے، وائی فائی کٹا ہوا ہے، ایم بی سے کام چلا رہے ہیں. دیکھیے تب تو لگتا ہے جلدی ہی آپ کو ٹائم دینا پڑے گا، کٹ گیا راستے ہی میں. لائٹ ہی نہیں ہے نا، کسی طریقے سے اجالا کیا ہوں روم میں. اچھا اجالا تو بہت اچھا ہے ماشاء اللہ. ابھی ٹھیک ٹھاک ہے. آج انعام صاحب پہلے پروگرام کا آغاز کریں. اور آپ نے دیکھ ہی لیا ہوگا کہ وہ پوسٹر جو آج کا ہے اس میں کون کون لوگ ہیں، ہے نا؟ جی جی شیخ. ہاں تو کون تلاوت قرآن میں ہے، کون نعت میں ہے اور کون تقریر میں ہے. اس کے بعد ہم لوگوں کی بات چیتیں ہوتی ہیں. تو چلے اس پروگرام کا آغاز کریں، شروع کریں. میری آواز پہنچ رہی ہے شیخ؟ جی آ رہی کر دیا آپ کا. حامد و مسلین اما بعد. سامعین کرام، یہ اس پروگرام کے بارے میں آپ سبھی جانتے ہیں. اللہ رب العالمین سے دعا گو ہوں کہ اللہ رب العالمین اس پروگرام کو ہم سبھی کے حق میں مفید بنا دے اور تمام مشارکین، ناظرین اور سامعین کو اس کا بہتر بدلہ دے، آمین یا رب العالمین. سامعین پروگرام میں آپ تمام لوگوں کے شکریہ کے ساتھ اس پروگرام کا آغاز کرتا ہوں اور تلاوت کلام اللہ کے لیے بابو احمد بن عبد الرحیم کو دعوت دیتا ہوں کہ آپ آئیں اور تلاوت کلام اللہ کے ذریعے سے اس پروگرام کا آغاز کریں. السلام علیکم. السلام ورحمۃ اللہ. السلام علیکم. السلام ورحمۃ اللہ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات والأرض وما بينهما وما تحت الثرى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى. وهل أتاك حديث موسى إذ رأى نارا
فقال لأهلهم امكثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع نعليك إنك بالوادي المقدس طوى. جزاکم اللہ خیرہ. بہت ہی اچھے انداز میں بابو تلاوت فرما رہے تھے. پچھلے ہفتہ بھی میں نے آپ کی تلاوت سنی تھی اور میں نے رپورٹ بھی تیار کیا تھا. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ آپ کی عمر کو لمبی کرے اور آپ سے دین کی خدمت کا کام لے اور آپ کو سدا اپنے حفظ و امان میں رکھے اور معاشرے کے لیے، قوم کے لیے اور سماج کے لیے مفید بنائے. آمین یا رب العالمین. اب اس کے بعد میں اپنے اس پروگرام کے مشہور شاعر جناب شکیل صاحب کو دعوت دیتا ہوں کہ آپ نعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چند اشعار گنگنائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چند اشعار سماعت فرمائیں. دونوں عالم میں صلی اللہ کی صدا حسن گلشن میں پھر سے نکھارا گیا. دونوں عالم میں صلی اللہ کی صدا حسن گلشن میں پھر سے نکھارا گیا. سارے معبود جھوٹے گرے منہ کے بل، سارے معبود جھوٹے گرے منہ کے بل، دیکھو محبوب پر بردگار آ گیا. دیکھو محبوب پر بردگار آ گیا. آپ نور ہدا آپ شمس و ضحیٰ، آپ نور ہدا آپ شمس و ضحیٰ، پاسبانی حرم سید الانبیاء. آپ نور ہدا آپ شمس و ضحیٰ، پاسبانی حرم سید الانبیاء. ساری دنیا میں جو دین پھیلائے گا، ساری دنیا میں جو دین پھیلائے گا، دین کا لے کے روشن منار آ گیا. دین کا لے کے روشن منار آ گیا. ترجمان زبان وہیں سے ہوئی، ترجمان زبان وہیں سے ہوئی، پیش گوئی کی جو بھی گوہر باریا. ترجمان زبان وہیں سے ہوئی، پیش گوئی کی جو بھی گوہر باریا. آج منظر وہ سب سامنے آ گئے، آج منظر وہ سب سامنے آ گئے، کافروں کو بھی پھر اعتبار آ گیا. کافروں کو بھی پھر اعتبار آ گیا. منتظر تھے یہود و نصارہ بہت، منتظر تھے یہود و نصارہ بہت، ہم میں آئے گا وہ آخری رہنما، ہم میں آئیں گے وہ آخری رہنما. پر بغاوت سے کانٹے بچھانے لگے، پر بغاوت سے کانٹے بچھانے لگے، کیسے غربا میں جانے بہار آ گیا، کیسے غربا میں جانے بہار آ گیا. دونوں عالم میں صلی اللہ کی صدا حسن گلشن میں پھر سے نکھار آ گیا. حسن گلشن میں پھر سے نکھار آ گیا. خبر ایک ایسا نبی آئے گا، خبر ایک ایسا نبی آئے گا، حسن اخلاق سے دین پھیلائے گا،
थी खबर एक ऐसा नबी आएगा, उसने अखलाक से दीन फैलाएगा, खुद न खाएगा सबको खिलाएगा वो गमज़दों का वही गम गुसारा गया, गमज़दों का वही गम गुसारा गया, दोनों आलम में सल्ले अला की सदा, उसने गुलशन में फिर से निखारा गया, सारे माबूद झूठे गिरे मुंह के बल, देखो महबूब पर बरदिगारा गया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माशाअल्लाह, इसमें कोई शक नहीं है कि बहुत ही अच्छी आवाज़ में आप गा रहे थे। अल्लाह रब्बुल आलमीन आपकी आवाज़ में मज़ीद तासीर पैदा करे और आप के नातिया और अम्बिया अशआर को कबूल फरमाए और इसका बेहतर बदला अता करे। आमीन या रब्बल आलमीन। सामईन, मैं फिर से आप सबों का शुक्रिया अदा करता हूँ। आप सब लोग प्रोग्राम में आए हुए हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन इसका बेहतर बदला अता करे और खबर इसके कि मैं इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाऊँ, मेरे कारवा का इंतखाब कर देना मुनासिब समझता हूँ। तो मैं इस प्रोग्राम की मेरे कारवा को इस शेर के साथ दावत देता हूँ कि फूल गुल शम्सो कमर सारे ही थे, फूल गुल शम्सो कमर सारे ही थे, पर हमें उनमें तुम्ही भाई बहुत। मैं मुकम्मल अदब व एहतराम के साथ फजीलत शेख अब्दुल रहीम मदनी हाफिज़हुल्लाह को दावत सदारत पेश करता हूँ और आपकी सदारत में इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। सामीन, आज का जो मौजू है वह जहेज़ के ऊपर हम इससे पहले भी बात कर चुके थे और तकरीबन तमाम बातों का खुलासा हो चुका था कि जहेज़ क्या है, जायज़ है, नाजायज़ है, कितना दे सकते हैं, कितना ले सकते हैं, शादी की शरई हैसियत क्या है, तकरीबन तमाम बातों का खुलासा हो चुका था। इस मरतबा फिर हमारे इश्तिहार में जहेज़ के ऊपर हम बात करेंगे अपने इश्तिहार के मौजू के एतबार से। और आज के जो खतीब है हज़रत शेख अब्दुल वाहिद हाफिज़हुल्लाह हमारे बीच मौजूद हैं। हम उम्मीद करते हैं कि इंशाअल्लाह शेख हमें कुरान और हदीस की रोशनी में मज़ीद इस मौजू के बारे में बताएंगे और हमारी रहनुमाई किसी अच्छी जानकारी और नई मालूमात की तरफ करेंगे। मैं शेख अब्दुल वाहिद हाफिज़हुल्लाह को दावत देता हूँ कि आप इस मौजू पर बात करें और इस बात को शुरू करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व मन तबिअहुम बि इहसानिन इला यौमिद्दीन, अम्मा बअद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वकुलू वशरबू वला तुस्रिफू इन्नहु ला युहिब्बुल मुस्रिफीन। मुहतरम सामीन व नाज़रीन किराम, व आज इस प्रोग्राम के सदर जी वक़ार फजीलतुल शेख जनाब मौलाना अब्दुल रहीम मदनी हाफिज़हुल्लाह, अल्लाह रब्बुल आलमीन के तारीफ और उसके हम्द व सना के बाद दरूद व सलाम हो अल्लाह के तमाम नेक बंदों, नबियों, रसूलों, खुसूसन जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। इसके साथ साथ शुक्रगुजार हैं मकसद हयात टीम के, जिन्होंने इस बार भी मुझे ये सुनहरे मौका अता फरमाया कि इस प्रोग्राम में मैं
जहेज और बारात के मौजू के तहत कुछ अपनी बातें रखूं। अल्लाह रब्बुल आलमीन मुझे सच कहने की तौफीक अता फरमाए और उसके साथ साथ अमल करने की तौफीक अता फरमाए, और मकसद हयात की पूरी टीम को अल्लाह रब्बुल आलमीन इस तरीके के प्रोग्राम करने की बार बार तौफीक अता फरमा, आमीन। मोहतरम सामईन व नाज़रीन किराम, जैसा कि शादी ब्याह आज की इस मौजूदा दौर में इसने जो एक शक्ल अख्तियार कर ली है, अगर इस शादी ब्याह के मौजू को बनज़र गायर इसका मुताला किया जाए तो इसमें बहुत कम नुक्ते ऐसे नजर आते हैं जो शरीयत के मुताबिक हैं, और इस मसले में तकरीबन आलिम से लेकर के इमाम, मुअज्जिन और दीगर तमाम वो लोग जो कहीं ना कहीं इल्म की अच्छी सलाहियत रखते हैं, वो भी इस परेशानी या इस शादी विवाह के इस मामले में इस तरीके से उलझे हुए हैं कि हर कोई अपने आप में तन्हा होकर के एक रोना रोता है कि शादी विवाह का मामला बहुत ही गंभीर मामला बन चुका है। इसके अंदर तमाम किस्म की परेशानियां आ चुकी हैं, खाने से लेकर के तमाम तर जो इंतजामात किए जाते हैं, वो इंतजामात एक इंसान की जो ताकत है, जो कुव्वत है, उससे बढ़ करके होती है, और जिसके नतीजे में होता ये है कि एक इंसान शादी विवाह करने के बाद भी उस शादी में जो खर्च करता है उसके कर्ज के बोझ के तले इस तरीके से दबा रहता है कि फिर जब तक एक शादी वो करके फारिग होता है, फिर दूसरी शादी करने की जिम्मेदारी उसके सर पे आ जाती है। अभी पिछला जो उसका कर्ज है अभी वो खत्म नहीं हुआ कि दूसरी शादी में वो मजीद कर्ज लेकर के शादी विवाह के रस्म को अदा करता है। मोहतरम सामीन व नाज़रीन किराम, सबसे पहले हम ये जानते हैं कि जहेज किस चीज का नाम है। जिस तरीके से मुख्तलिफ अंदाज में मुख्तलिफ तरीके से लोग जहेज की तारीफ करते हैं, और खुसूसन दरअसल बात यह है कि जहेज को हम यूं समझ सकते हैं और समझा भी जाता है कि जहेज उसी चीज का नाम है जो शादी के मौके पर बच्ची को या उसके घर वालों की मांग पर जो भी चीजें दी जाती हैं उस चीज का नाम जहेज है। इस जहेज को लेकर के बाज लोग इसे एक हद तक मांगने की कोशिश करते हैं, और ये कोशिश होती है कि ज्यादा से ज्यादा तादाद में, ज्यादा से ज्यादा मिकदार में हम जहेज वसूल कर लें। अव्वलन कुछ लोग ऐसे हमारे माशरे के अंदर भी मौजूद हैं जो जहेज लेना नहीं चाहते हैं, लेकिन वो अपने बच्चे को पढ़ा लिखा करके जब किसी काबिल कर देते हैं, किसी सलाहियत का हामिल हो जाता है, तो फिर उनके जहन में ये बात आती है कि लड़का हमारा इतना पढ़ लिख करके इतनी बड़ी डिग्री हासिल कर चुका है, अगर हम इसके शादी के एवज में, शादी के बदले जहाँ पे इसकी शादी हो रही है, अगर हम इससे कुछ रुपया पैसा नहीं ले रहे हैं, तो हमने जो इसके तालीम पे जो रुपया पैसा खर्च किया है वो हमारा नुकसान हो जाएगा। फिर वो इस बात को सोच करके ऐसे पढ़े लिखे लोग, ऐसे घर घराने के लोग भी जहेज मांगने के लिए बिल्कुल तैयार हो जाते हैं, और उसका लड़का जब इस अम्र को लेकर के, इस मामले को लेकर के, इस चीज को लेकर के वो इनकार करता है कि हमें जहेज नहीं चाहिए, तो फिर उसके घर वाले उसे
मजबूर करते हैं कि उसे जहेज लेना है। इसलिए मेरे भाइयों, देखा यही जाता है कि शादी की सबसे कीमती आइटम जो है जहेज, माशरे में तनकीद और बहस व मुबाहसे का मौजू बनने के बावजूद भी जो लड़की वालों के लिए एक ऐसी रस्म बन गया है जिसे चारों और मुख्तलिफ जिहत में देखा जाता है कि हर कोई इसके अंदर मुलविस है, ना चाहते हुए भी इस रस्म को अदा करता है और जैसे भी हो उसे पूरे पूरे जो है करने की कोशिश करता है और करना पड़ता है। तस्वुर ये है कि लड़की जब अपना घर बसाए तो उसे जरूरियात जिंदगी की चंद बुनियादी अशिया मैसर हो, खुसूसन इसमें लड़की के घर वालों की तरफ से भी ये बात होती है और कहीं ना कहीं उनके रुझान में, उनके ज़हन और दिमाग में ये बात होती है कि जब बच्ची हमारे घर से रुखसत हो तो उसके लिए हम कुछ जरूरियात जिंदगी के जो बुनियादी चीजें हैं हम उसे दे दें और उसके साथ साथ बुनियादी चीजों का जहां तक तस्वुर है वो लोग इस चीज से कहीं ज्यादा आगे निकल चुके हैं। आज लोग इसी जहेज के नाम पे, जहां वो तोहफे के नाम पे या हदिये के नाम पे जो चीजें दे रहे हैं वो इंसान अपनी ताकत से ज्यादा खर्च कर रहा है। और इस मसले का अफसोसनाक पहलू यह है कि बेशतर लड़के वालों ने इसे अपनी खुशहाली का जरिया समझ रखा है। लड़के वाले ये समझते हैं कि हमें वो चीजें मिल जाएंगी तो इससे हमारा मामला हल हो जाएगा। कुछ लोग तो ऐसे भी होते हैं जो शादी के मौके से लेकर के और उसके तमाम अखराजात जो लड़के की तरफ से होनी चाहिए होते हैं, लड़के वाले अब लड़की की तरफ से जो खर्चा हो रहा है उसमें भी लड़की वाले से मुतालबा करते हैं कि आप हमें 2 लाख 4 लाख रुपया दे दीजिए, अभी हमारे पास इसकी इस्तिताअत नहीं है, हमारे पास मजबूरी है, अगर आप हमें ये पैसा दे देते हैं तो इस वक्त हम शादी करने के मूड में हो सकते हैं, हमारी ताकत हो सकती है, वरना हम शादी करने के बिल्कुल काबिल नहीं है। अब इस मजबूरी के तहत लड़की वाला इसको भी स्वीकार करने के लिए, इसको भी कबूल करने के लिए तैयार हो जाता है और उसे 1 लाख 2 लाख 4 लाख रुपया दे करके शादी करने के लिए तैयार हो जाता है। जबकि होना यह चाहिए था कि जो कुछ खर्चा हो रहा है शादी के नाम पर, ये अखराजात अगर देखा जाए तो लड़के वाले की तरफ से होनी चाहिए, लेकिन लड़के वाले ना कुछ खर्च करके बल्कि जहेज के नाम पे उसे पैसा भी लेते हैं, सामान भी लेते हैं और उसे अपनी खुशहाली का जरिया समझते हैं। और उसके साथ साथ वो ये तवक्को रखते हैं कि लड़की अपने साथ जो है मुख्तलिफ किस्म के अशिया लेकर के आएगी। इतना सब खर्च देने के बावजूद लड़की वाले अपने बच्ची को जो है बेड, डाइनिंग टेबल, इसी तरीके से फ्रीज, टीवी और एयर कंडीशनर और इसी तरीके से सोफा सेट, सिलाई मशीन, मुख्तलिफ किस्म की चीजें वो अपने घर से लेकर के आती है। और फिर उसके बाद में जब वो ससुराल में आती है तो उससे भी, उसके बावजूद भी खौफ लगा रहता है कि कहीं ऐसा ना हो कि हमारे वालिदैन ने या हमारे अजीजों ने, हमारे घर वालों ने जो चीज हमें अता की है उसके अंदर कहीं कोई कमी ना हो। और उसके बावजूद भी लोग उसके अंदर कमियां निकालने शुरू कर देते हैं और इस तरीके से कमी निकाल देते हैं कि बाज शादी होने के बाद, बच्ची अपने ससुराल में आने के बाद इसी मसले को लेकर के तलाक का भी मामला सामने आ जाता है, तलाक की नौबत सामने आ जाती है और सामान
की कमी और ज्यादती की वजह से बच्ची का तलाक होना, ये लड़के वालों के घर की तरफ से फैसला हो जाता है। मोहतरम नाजरीन व सामीन किराम, एक बहुत ही भयानक रस्म और बहुत ही भयानक जो है चीज हमारे मुआशरे के अंदर आ चुकी है। इस चीज से हम तमाम लोगों को बचने की कोशिश करनी चाहिए, ये समझते हुए कि जहेज कोई शरई हुक्म नहीं है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुतअद्दिद शादियां की, लेकिन आप सल्लम की अज़वाजे मुतहरात में से कोई भी अपने साथ जहेज लेकर के नहीं आई। एक नुक्ते की बात है जहां पे लोग जहेज को बड़ी मिकदार में अपनी बच्चियों को दिया करते हैं। आप देखें अल्लाह के रसूल सल्लम की जितने भी अजवाज़े मुतहरात थी, उनमें से कोई भी अपने साथ जहेज लेकर के नहीं आई। इसी तरीके से रसूलुल्लाह सल्लम की 4 बेटियां थी, आप सल्लम ने चारों की शादियां की, लेकिन आपने किसी को भी शादी के मौके पर जहेज नहीं दिया। हमारे माशरे के अंदर बाज लोग ये बात भी लेकर के इस बात को ऐसे मौके पर पेश करते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटी फातिमा को जहेज दिया था। मेरे भाइयों, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो जहेज नहीं दिया था, बल्कि हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर रहते थे। उनके पास अपना कोई मकान या इस तरीके से उनके पास कोई ऐसी चीजें नहीं थी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली से मुतालबा किया और उन्होंने कहा कि मेरे पास कुछ नहीं है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, जैसा कि हदीस के अंदर आता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अपने जो आपके पास जो ज़रा है उसे बेच दो। चुनांचे उस ज़रा को बेच दिया गया। और दूसरी हदीस में इसकी वजाहत मिलती है कि उसी पैसे से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो सब सामान जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फातिमा को दिया था, उसी पैसे से खरीद के दिया था। मेरे भाइयों, इसी तरीके से सहाबे किराम में भी किसी से यह रिवाज और ये रस्म कहीं नहीं मिलती है कि इस एतबार से ये खालिस हिंदुआना रस्म है। कहीं शरीयत के अंदर इसकी कोई गुंजाइश, कोई इस तरीके से रस्म रिवाज नहीं मिलती है। अगर देखा जाए तो ये खालिस हिंदुआना रस्म रिवाज है। अल्लाह के रसूल सल्लम की बीवियां, अल्लाह के रसूल सल्लम की जितनी बीवियां थी, कोई जहेज नहीं लेकर के आई। आप सल्लम के पास 4 बेटियां थी, आपने किसी को नहीं दिया। और रही बात, अगर आप सल्लम ने हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को कुछ दिया था जहेज के नाम पे, तो दीगर आपकी जो दूसरे 3 बच्चियां थी, आप सल्लम ने उनको कुछ भी नहीं दिया था। इससे मालूम हुआ कि आप सल्लम ने किसी को कुछ नहीं दिया था। ये अल्लाह के रसूल सल्लम और सहाबे किराम की जिंदगी को जब हम और आप पढ़ते हैं तो ये चीजें हमें मालूम होती है कि जहेज का शरीयत से कोई लेना देना नहीं है। ये एक हिंदुआना रस्म है, इसलिए कि हिंदू मजहब में औरत विरासत की हक नहीं रखती। उनकी यहाँ ये रस्म है कि औरत जो है ये विरासत की हकदार नहीं होती है। जैसा कि हमारे शरीयत इस्लामिया में इस बच्ची की विरासत अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुकर्रर कर दी है। अच्छा, कुछ मुआशरे के अंदर हमारे कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बच्ची को जो जहेज देते हैं वो उसकी विरासत समझ करके देते हैं। मेरे भाइयों, बच्ची की शादी करना, बच्चे की शादी करना, ये वालिदैन के ऊपर एक अलग किस्म की जिम्मेदारी है। और विरासत का जो मामला है ये अलग है। आप किसी बच्चे की या किसी बच्चे की शादी कर देने से उसकी विरासत और उसका जो हक है वो खत्म नहीं हो जाता। इसलिए बाप की जायदाद की वारिस सिर्फ और सिर्फ औलादे नरीना ही नहीं होती है, बल्कि औलादे नरीना से मुराद उसकी बेटा और बेटी है ना, ये दोनों इसमें शामिल हैं, दोनों इसके हकदार हैं। गर्चे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इनके हक में जो है दो और जो इसका हक मुकर्रर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया है वो अलग तरीका है। बहरहाल शादी और विवाह कर देने से वालिदैन के हक विरासत से खारिज नहीं हो जाते। इस बिना पर हिंदू शादी के मौके पर लड़की को
घरेलू नौइयत के सामान की शक्ल में अपनी जायदाद में से कुछ हिस्सा दे देते हैं। ये जहेज की जो रस्म है ये हकीकतन हिंदुआना रस्म है, शरीयत से इसका कोई लेन देन नहीं है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया वकुलू वशरबू वला तुसरिफू, खाओ और पियो, इसराफ ना करो, इसलिए कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ज्यादा खर्च करने वाले को पसंद नहीं करता है। आज जहेज के नाम पे और शादी विवाह के नाम पे लोग कितना ज्यादा रुपया पैसा खर्च कर देते हैं, एक लंबी फहरिस्त तैयार करते हैं शादी विवाह के मौके पर और कई महीनों से इसके ताल्लुक से बाजार करते हैं, कपड़ा खरीदते हैं, यहाँ तक कि जहाँ पे बच्ची की शादी होती है उसके खानदान में से उसके सास ससुर, उसके भाभी और उसके देवर और उसके ननद, उसके नाना नानी, उसके मामा ममाली, तमाम लोगों के कपड़े खरीदे जाते हैं और उसकी अच्छी खासी कीमत होती है, उसकी एक अच्छी खासी कीमत होती है। ये तमाम की तमाम सूरतें जो हैं ये सब की सब जहेज की शक्ल में आती हैं। इसलिए मेरे भाइयों, आपको और हमें तमाम लोगों को चाहिए कि इस भयानक रस्म से हम और आप इज्तनाब करें, परहेज करें। मुसलमानों ने भी इस रिवाज को इख्तियार कर लिया है, ये हिंदुआना रस्म आज मुसलमानों ने भी इसको इख्तियार कर लिया है। इसकी वजह वह मुतअद्दिद मुश्किलात का शिकार हो गए हैं, इसकी वजह से मुतअद्दिद मुश्किलात के वो शिकार हो गए हैं। एक तो जहेज को लाजमी तस्वुर कर लिया गया है, हत्ता कि उसके लिए भारी कर्ज भी लेना पड़े तो ले लेते हैं। आज भी हमारे मुआशरे में ये बात देखने में आती है कि जैसे ही शादी खत्म हो जाती है इतने अच्छे जो है मिकदार में रुपया पैसा सर्फ करने के बावजूद भी लड़की के घर वाले कर्जदार हो जाते हैं और कुछ कर्ज ऐसे होते हैं जो बिल्कुल अदा ही नहीं कर पाता है। फिर बाद में पता चल जाता है कि ये फला फला आदमी का कर्ज है, मसलन टेंट वाले का पैसा, गोश्त वाले का पैसा और दीगर या मिठाई वाले का पैसा, ऐसे लोग भी मुतालबा करने के लिए आ जाते हैं। उसके बाद घर के जो अफराद होते हैं वो अपने सर को छुपाते, अपने चेहरे को छुपाते हैं, घरों के अंदर बैठे रहते हैं, मुख्तलिफ किस्म के बहाने करते हैं, हमारे पास अभी पैसे नहीं है, रुपए नहीं है। इसलिए इस जहेज के चक्कर में इंसान एक भारी कर्ज का जिम्मेदार हो जाता है, कर्ज ले लेता है और फिर सारी उम्र कर्ज के बोझ तले दबे रहते हैं। सानियन, हिंदुओं की तरह फिर लड़कियों को बिलउमूम विरासत में से हिस्सा नहीं देते हैं, फिर लड़कियों को हिंदुओं की तरह से विरासत में से हिस्सा नहीं देते हैं। भाई जहेज ही को विरासत का बदल करार देते हैं। ऐसे लोग जहेज को विरासत का बदल समझते हुए बहुत ज्यादा खर्च कर देते हैं कि इसके बाद हमें अपने बच्ची को अपने माल में से, अपनी जायदाद में से हिस्सा नहीं देना होगा। बहनों को विरासत से महरूम रखने की मज़मून सही करते हैं भाइयों कि यहाँ ये बात पाई जाती है कि ये लोग अपने बहनों को जो है जहेज के नाम पे तमाम की तमाम चीजें देने के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन जहाँ पे विरासत का मामला आता है तो वहीं पे कह बैठते हैं कि वालिदैन ने आपकी शादी में इतना रुपया पैसा खर्च कर दिया है, आपको विरासत में हिस्सा नहीं मिलेगा। इसी तरीके से और भी मुतअद्दिद कबाहतें हैं जो जहेज में पाई जाती हैं। इनमें से एक बड़ी कबाहत यह है कि जो लड़की के घर वाले होते हैं बिल्कुल एक भिखारी की शक्ल में जो है लड़की वाले के घर वालों के सामने अपने हाथ को फैला देते हैं। एक बिल्कुल भिखारी की शक्ल है और वो लड़की वालों से फरमाइशी सामान तलब करता है, हालांकि अल्लाह ताला ने इसे औरतों पर कवामीन बनाया है, औरतों का जिम्मेदार बनाया है। नानो नफ़ा की जिम्मेदारी ऐसे लोगों के ऊपर है, लड़के वालों के जिम्मा ये चीज पाई जाती है, उसके बावजूद भी लोग लड़की वालों के सामने अपने हाथ को फैला देते हैं, एक भिखारी की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं। और इसकी दो वजहें बयान फरमाई है। एक ये कि अल्लाह ताला ने उसे जिस्मानी और दिमागी कुव्वत और सलाहियत में औरत से मुमताज किया है। अल्लाह ने मर्द को औरत के लिए कव्वाम
جو ہے ایک ذمہ دار، ایک قوام کی شکل میں اللہ نے کیوں بنایا؟ اس لیے کہ یہ مرد جو ہے جسمانی اعتبار سے اور عقل و ذہن کے اعتبار سے، طاقت کے اعتبار سے یہ مضبوط ہے، اور دماغی قوت و صلاحیت میں عورت سے ممتاز ہے۔ دوسری یہ ہے کہ عورت پر اپنا مال خرچ کرنے والا ہے۔ اللہ رب العالمین نے ایک مرد کو اتنی صلاحیت دیتا ہے کہ وہ روزی روٹی کما سکے اور مختلف ممالک کا سفر بھی کرتا ہے، اس لیے یہ اپنے روپے پیسے مال کو اپنی بیوی کے اوپر خرچ کر سکتا ہے۔ اس لیے یہ مال خرچ کرنا ایک مرد کے لیے یہ اس کی ذمہ داری ہے، نہ کہ لڑکی والوں کے گھر اور ان کے سامنے ہاتھ پھیلائے یہ اور بھکاری کے شکل میں مختلف چیزوں کے مطالبات کرے۔ اس کا شریعت سے کوئی لین دین نہیں ہے، شریعت میں ایسی چیزیں بالکل ناجائز ہیں۔ اس کے نان و نفع کی ذمہ دار خود لڑکا یعنی جس سے اس کی شادی ہو رہی ہے وہ اس کا ذمہ دار ہے۔ اس لیے آج ہمارے معاشرے میں یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ بعض داماد ایسے ہوتے ہیں جو گھر جمائی بن کر کے بیٹھ جاتے ہیں لڑکی والے کے ہاں، اور اسی کے یہاں بیٹھ کر کے کھانا پانی اور اس کے جو ہے اخراجات پہ، اس کے مال و دولت پہ بھروسہ کر کے بیٹھے رہتے ہیں، اور ان کی لعن طعن جیسے الفاظ کو، ان کی لعن طعن جیسی باتوں کو بھی سنتے ہیں۔ گھر جمائی بن کر کے بیٹھے ہیں اور ان کی لعن طعن، ان کی مختلف قسم کے لغویات اور ان کے طعنے برداشت کرتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے ایسے لوگ کمانے سے بالکل کورے ہوتے ہیں، ان کے اندر یہ صلاحیت نہیں ہوتی ہے کہ ہم کچھ محنت کریں، ہم کچھ کمائیں اور اس کے ذمہ دار ہم خود بنیں، ہم اپنے بچوں کے نان و نفقہ، اپنے بچوں کے روزی روٹی کا بندوبست ہم خود کریں۔ میرے بھائیوں، آج اسی جہیز کے ساتھ ساتھ معاشرے کے اندر کتنی ایسی بہنیں ہیں، کتنے ایسی بچیاں ہیں جو جہیز کی وجہ سے اپنے آپ کو زہر کھا کر کے اپنے آپ کو ہلاکت کی طرف لے کر کے جاتی ہیں۔ کتنی بچیاں ایسی ہیں جو پھانسی لگا لیتی ہیں، کتنی بچیاں ایسی ہیں جو خودکشی کرنے پر مجبور ہو جاتی ہیں۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ جہیز معاشرے کا ایک بھیانک جو ہے یہ معاشرے میں بھیانک بیماری کی شکل میں اور جراثیم کی شکل میں ہم تمام انسانوں کے درمیان یہ چیز پھیل چکی ہے۔ اس لیے ہم تمام لوگوں کو چاہیے کہ اس سے اجتناب کریں، اور اس مسئلے کو جب کہیں بھی بیان کیا جاتا ہے کہ شادی وواہ کے موقع پر آپ اتنا خرچ نہ کریں، تو وہ لوگ برجستہ جواب دیتے ہیں کہ ہم صاحب حیثیت ہیں، ہمارے پاس روپیہ پیسہ ہے، ہم دولت والے ہیں، ہم اس چیز کو خرچ کر سکتے ہیں، ہمارے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ رب العالمین نے جو نعمت دی ہے اس نعمت کی قدر کرنی چاہیے، اس نعمت کی ہمیں قدر کرنی چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ ہم اپنے روپے پیسے کو خرچ کرتے چلے جائیں اور ایک دن ایسا نہ ہو کہ ہم بالکل بھکاری بن جائیں، ہمارے پاس کچھ نہ ہو، کیونکہ جو ہے فضول خرچی یہ اچھی بات نہیں ہے۔ ان المبذرین کانوا، یہ جو ہے فضول خرچی کرنے والا یہ شیطان کا بھائی ہے۔ اس لیے فضول خرچی کرنے سے بچنا چاہیے۔ معاشرے کے اندر تمام قسم کے وہ چیز جو جہیز کے اندر آتے ہیں، تمام کی تمام چیزیں حرام ہیں بالکل۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ بارات کا جو معاملہ ہے، اس پہ تو بالکل بلا چوچرا یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ بارات یہ بالکل حرام ہے، حرام ہے، حرام ہے۔ شریعت کے اندر اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے، جیسا کہ بہت ساری حدیثیں ہیں، اور اسے دیکھنے کے بعد، اسے پڑھنے کے بعد یہ معلوم ہوتا ہے کہ شادی کرنے کے بعد، جیسا کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف جب انہوں نے شادی کر لی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بعد میں اس کا علم ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا آپ نے شادی کر لی؟ انہوں نے کہا ہاں میں نے شادی کر لی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ولیمہ کرو۔ میرے بھائیوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر بارات لے جانے کا معاملہ ہوتا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے پہلے حضرت عبد الرحمن بن عوف بلاتے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہیں، ان کو ضرور سب سے پہلے بلاتے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ بارات بالکل قطعاً شریعت کے اندر جائز نہیں ہے، اس کی کوئی گنجائش
نہیں ہے, یہ حرام ہے, حرام ہے, حرام ہے. رہی بات ایک جائز کی صورت تک, اگر چند افراد شادی کے نام پر دو چار لوگ لڑکی والے کے گھر اور ان کی اجازت لے کر کے اگر ان کے یہاں جاتے ہیں, اگر وہ اجازت دیتے ہیں کہ ہمارے یہاں چند لوگ آ جائیں, تو ایسی صورت میں بعض لوگ اسے جائز قرار دیتے ہیں. لیکن ایک ذم غفیر کی تعداد میں, ایک لمبی تعداد میں جانا اور اس کے بعد ان کے یہاں کھانے کا مطالبہ کرنا, مختلف قسم کی چیزیں مانگنا, کھانے کی فرمائش کرنا, یہ تمام کی تمام چیزیں بالکل قطعاً ناجائز اور جو ہے درست نہیں ہے. ان تمام چیزوں سے ہم تمام لوگوں کو اجتناب کرنا چاہیے, اس سے پرہیز کرنا چاہیے. اب اس کے بعد جو چیزیں ہمارے لیے اور آپ کے لیے جہیز کے نام پہ سب سے زیادہ جو نقصان دہ ثابت ہوتی ہیں اور سب سے زیادہ جو خرچ کرنے والی ہیں, وہ یہ ہے کہ شادی کے نام پر جو سامان جہیز تیار کیا جاتا ہے وہ مختلف قسم کی ہوتی ہیں. جی میں دیکھ رہا ہوں ٹائم 2 منٹ ہے, کوئی بات نہیں. اصل میں گھر میں بیٹھا بھی, آواز بھی ادھر ادھر سے آ رہی ہے, میں ڈسٹرب ہو رہا ہوں. تو ان تمام مسئلے کا حل یہ ہے, اور شریعت کے اندر اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے, بالکل جہیز حرام ہے, بارات لے جانا حرام ہے. رہی بات تحفے تحائف کے نام پہ اگر کچھ دیا جا سکتا ہے, بچی کو دیا جا سکتا ہے, اور اتنا ہی دیا جا سکتا ہے جتنے آپ اپنے لیے آسانی سمجھتے ہیں, اس میں کوئی زبردستی نہ ہو, کوئی ایسی زیادتی نہ ہو کہ بچی کو سامان دینے کے بعد خود انسان قرض میں ڈوب جائے. ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمیں شادی بیواہ کے رسوم کو انجام دینا چاہیے. ایک بات اور گوشے گزار کر دینا چاہتا ہوں کہ شادی میں جو مہر کی بات آتی ہے, کچھ لوگ اچھی خاصی مقدار میں مہر متعین کرتے ہیں, اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے پاس جو ہے وسعت کی کمی ہوتی ہے, وہ چند روپے پیسوں کی عوض میں مہر کو مقرر کر دیتے ہیں. میرے بھائیوں, ایسے لوگ جو دکھاوے کے لیے ایک اچھی خاصی رقم جو ہے مہر میں خرچ کرتے ہیں, ایسے لوگوں کو بھی چاہیے کہ ایک معتدل راستہ اختیار کریں جو ان کے لیے مناسب ہو. اور اکثر ایسا دیکھا گیا ہے, کوئی ایسا شخص نہیں ہے جو شادی کے موقع پر تھوڑا بہت قرض دار نہ ہو جاتا ہو. اس لیے اپنے جیب کی اجازت دیکھتے ہوئے, اپنے مال, اپنے جائیداد, اپنے روپے پیسے کو دیکھتے ہوئے ہم تمام لوگوں کو شادی بیواہ کے رسوم کو جو ہے ادا کرنا چاہیے. الہ العالمین سے دعا ہے کہ پاک پروردگار ہم تمام مسلمانوں کو شادی بیواہ کو اسلامی نقطہ نظر سے کرنے کی توفیق عطا فرما. ہم تمام لوگوں کو جو ہے ان تمام رسوم سے بچا جس کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے. الہ العالمین تو ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. آمین. اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين واخر دعوانا الحمد لله رب العالمین. ماشاءاللہ, کسی شاعر نے کہا ہے, جہیز نام ہی سے رنگ اڑ گیا اس کا, جہیز نام ہی سے رنگ اڑ گیا اس کا, غریب باپ کی بیٹی جہاں شناس لگی. بہت ہی اچھے انداز میں اور دلائل کی روشنی میں شیخ اپنی باتوں کو پیش کر رہے تھے. اس سے کچھ ہفتے قبل بھی جہیز کے متعلق بہت سارے پروگرام ہوئے تھے اس اسٹیج سے, میں نے اسے تحریری شکل بھی دی تھی. الحمدللہ بہت سارے اخبارات والوں نے اسے شائع بھی کیا تھا. انشاءاللہ اس مرتبہ بھی کوشش کروں گا اسے تحریری شکل دوں تاکہ بہت سارے لوگ اس سے فائدہ اٹھائے. سامعین کرام, ابھی ہم شیخ سے بہت قیمتی باتیں سماعت فرما رہے تھے. اللہ رب العالمین شیخ کو اس کا بہتر بدلہ عطا کرے اور شیخ کی عمر لمبی کرے, اور شیخ کو جب تک دنیا میں رکھے عزت کے ساتھ رکھے,
اور جب خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر کرے، آمین یا رب العالمین۔ سامعین، جہیز کے تعلق سے میں اپنی ایک بات پیش کرتا ہوں کہ ایک مرتبہ میں نے ایک شخص سے پوچھا کہ آپ نے اپنی بیٹی کی شادی کی تو اس میں کتنا خرچ ہوا؟ تو قبل اس کے کہ وہ باپ خرچ کو اجاگر کرتا، انہوں نے کہا کہ میں نے اپنی بیٹی کی شادی سنت کے طریقے سے کی، یعنی مکمل وہ سنتی شادی تھی۔ میں نے کہا کہ خرچ کتنا ہوا؟ تو انہوں نے کہا کہ بس 15 لاکھ۔ میں نے کہا کہ آپ نے 15 لاکھ خرچ کر دیا اور کہا سنتی شادی؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ نہیں، لڑکے والے کی طرف سے کوئی مانگ نہیں، لڑکے والوں نے کوئی مانگ نہیں کیا۔ تو ان کے جواب سے میں نے یہ رزلٹ اخذ کیا کہ ہمارے معاشرے میں جو لڑکے کی طرف سے مانگ کرتے ہیں وہ انہی کو جہیز استعمال کرتے ہیں کہ لڑکے نے اس کا مطالبہ کیا، گاڑی کا مطالبہ کیا، پیسے کا مطالبہ کیا، تو ہمارے سماج میں صرف وہ انہی کو جہیز شمار کرتے ہیں۔ تو انہوں نے 15 لاکھ خرچ کیا اور کہا کہ میں نے سنتی شادی کی، لڑکے والوں نے کوئی بھی مانگ نہیں کیا۔ سامعین، کسی شاعر نے کہا ہے کہ لیلا کے ساتھ کار بھی آئے جہیز میں، لیلا کے ساتھ کار بھی آئے جہیز میں، مجنو یہ کہا کہ ساتھ سے آگے نکل گئے۔ ہمارے بیچ بہت سارے علماء کرام موجود ہیں۔ پچھلے ہفتے ہمارے ساتھ حافظ الرحمان ولی المکی صاحب موجود تھے۔ میں رپورٹ تیار کرتے وقت میں نے ان کے بیانات کو سنا، بہت ہی اچھے انداز میں آپ فرما رہے تھے اور تجربے کی روشنی میں اپنی باتوں کو پیش کر رہے تھے۔ میں رپورٹ لکھتے وقت شیخ کی باتوں کو میں نوٹ کیا اور بہت ہی اچھی بات لگی۔ آج بھی ہمارے ساتھ وہ موجود ہیں۔ میں چاہوں گا کہ شیخ کو دعوت دوں تاکہ شیخ کی باتوں سے استفادہ کرنے کا موقع ملے۔ میں مکمل ادب و احترام کے ساتھ حضرت شیخ حافظ الرحمان ولی المکی کو دعوت دیتا ہوں کہ آپ اس اسٹیج سے کچھ باتیں پیش کریں جو ہم سب کے لیے فائدہ مند ہو۔ شیخ حافظ الرحمان ولی المکی صاحب اگر ہمیں سن رہے ہیں تو آپ اپنے آڈیو اور ویڈیو کو کھول لیں اور اپنی اس جہیز اور بارات کے تعلق سے آپ اپنی چند باتوں کو پیش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام سامعین کو اور جو مباشر ہیں غیر مباشر ہیں ہمارے طرف سے ہدیہ سلام عرض ہے۔ جہاں تک ابھی مقرر محترم کی قیمتی بات سماعت فرما رہے تھے اور تقریباً موضوع سے متعلق سارے گوشوں کو انہوں نے اجاگر کیا اختصار کے ساتھ، اور بھی ہمارے بعد بھی شیخ صدر محترم باقی ہیں، ان کا زبدۃ الکلام بھی باقی ہے۔ البتہ عرض کرنے کا حکم ہوا ہے تو اس سے پہلے شیخ عبدالعزیز صدر صوبہ نمبر 2 نے بہت ہی اصرار کے ساتھ اس تعلق سے گروپ ضلعی جمعیت دھانوشا پہ بار بار اٹھائے ہیں اور بار بار گفتگو ہو گئی ہے۔ میں بھی فرط جذبات میں آ کر کے ریکارڈنگ شروع کیا، لیکن ریکارڈنگ نہیں ہو پائی۔ 2 منٹ کے بعد مجھے کھانسی آ گئی اور پھر ڈیلیٹ کر دیا اور پھر ہمت بھی مات پڑ گئی، کیونکہ جب اس طرح کے سلگتے اور معاشرے میں پنپتے برائی کو جب دیکھتا ہوں تو میں جذبات میں آ جاتا ہوں، اور یہ لمبی تقریریں منبر و محراب سے علماء کرتے ہیں جس میں میں بھی داخل ہوں، اور مورد الزام سب سے پہلے میں اپنے کو گردانتا ہوں، کیونکہ ہو سکتا ہے میری باتوں میں، میرے کلمات میں کسی علماء کے شایان کے خلاف جو ہے کہیں سمجھ میں نہ آ جائے۔ بار بار یہی ڈھڈورا پیٹا جا رہا ہے کہ یہ جہیز لعنت ہے، یہ جہیز لعنت ہے، یہ جہیز لعنت ہے، اسے ختم کرنا چاہیے، یہ ہندوانہ رسم ہے، اس ہندوانہ رسم کو چھوڑنا چاہیے، کیونکہ ہندو دھرم ہمارا دھرم نہیں ہے، ہندو کلچر ہمارا کلچر نہیں ہے، ہندو تہذیب ہماری تہذیب نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مکمل کامل ہر زمان اور مکان کے لیے مکمل جو ہے دین دیا ہے، جس دین کے اندر کسی طرح کی تشنگی باقی نہیں ہے۔ بس ہم ہیں ایسے قابل افسوس اسلام کے ماننے والے
जो इस्लाम की तालीमात को नाक़िस समझते हैं या इस्लाम की तालीमात पे चलने को अपने आप में हतक महसूस करते हैं या इस्लामी तालीमात और रसूम और रवाज और तहजीब और सकाफत को अपनाने में आर महसूस करते हैं। मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गान दीन, मेरी आवाज अगर जा रही हो तो सुनेंगे। ये दिल की आवाज है और दिल तक पहुंचाना चाहता हूं। हकीकत में जो है, इससे पहले रमजान के मौके से कहा था, उस बात को यादा ज्यादा न समझें। कहा कि सदक़तुल फित्र जो है ये बरसों से आ रहा है, कैसे मिनटों में खत्म हो जाएगा। किसी उलमा ने कहा, हम कहें नहीं भाइयों, हिम्मत मर्दा मद खुदा, पहले आप आगे चल के तो निकलें। कैसे नहीं अल्लाह की हिम्मत शामिल हाल होती है। और देखें, सिर्फ गुज़श्ता साल से आवाज उठाई मैंने और अल्हम्दुलिल्लाह इस बार चिकना भोकराहा से सुन्नत के मुताबिक सदक़ात फित्र को गरीबों में तकसीम किया गया। तो यही मैं कह रहा हूं कि जहेज ये कौन सी बला है, ये जहेज कौन से ये वबाई कुदरती वबा है जो खत्म नहीं होने वाला है। ये तो वो मर्ज है जिसको हमने अपने हाथ से बनाया है, हाथ से समाज और मुआशरे में जन्म दिया है और हम ही को खत्म करना है। और खत्म करने की जिम्मेदारी, सबसे पहली जिम्मेदारी कंधे पे उलमा की होती है। और उलमा सिर्फ तकरीर तो करते हैं, तनफीज नहीं करते हैं। उलमा तकरीर को तो मिंबर मेहराम से आवाज तो उठाते हैं, लेकिन उसके खात्मे के लिए कदम नहीं बढ़ाते हैं। इसलिए मैंने ग्रुप पे यही रिकॉर्ड करने जा रहा था, जिसका इख्तिसारन दो चंद पॉइंट आपके सामने रखना चाहता हूं कि आखिर ये खत्म क्यों नहीं हो रहा, उसके पीछे है क्या। मेरे दोस्तों, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो बुराई के सद्देबाब के लिए सही बात को भी रोकना पड़ता है, सही बात मबाह कामों से भी रुकना पड़ता है। जैसे इससे पहले भी मैंने कहा था, इसी ताल्लुक से जब जद्दा के रास्ते में था, कि जहेज के खात्मे के लिए उलमा खड़े हो जाएं और सारे उलमा ये तय कर लें। और मैं बल्कि खुत्ता बनाया भी था, हो सकता है अल्लाह ने कहीं तौफीक दिया, कुछ अभी फैमिली और घरेलू मैटर को लेकर के उलझा हुआ हूं, वक्त नहीं मिल रहा है। वरना उसी दिन मैं सोचा लिखने का इंतजार न करके ऑडियो ही भेज देता हूं और उसमें सिर्फ और सिर्फ 3 ही जुमला लिख करके जिली जमीयत धनुषा के प्लेटफॉर्म से हम अपने उलमा भाई को ललकारता हूं और हम अपने ईमान और गैरत का जायजा लेना चाहता हूं कि सिर्फ हम मिंबर मेहराब से तकरीर करते हैं। मैं ये आवाज आप लोगों तक पहुंचाना चाहता हूं पहली फुर्सत में उलमा के नाम, कि ये कसम लिख करके दूंगा 3 तहरीर कि मैं कसम उठाता हूं आज से और आज की तारीख से कि जो भी बाराती लेके जाए या वो शादी जिसमें बारात और जहेज का अगर किसी तरह की बू पाई जाए, उस हम शादी में शिरकत नहीं करेंगे और उस शादी में निकाह नहीं पढ़ाएंगे। और ये जिली जमीयत धनुषा में कमो बेश 200 के करीब मिंबरान हैं और सारे को उलमा का ग्रुप कहा जाता है। या अगर उलमा नहीं है, हमारे अवाम ही में से सूद बूद रखने वाले हैं और अल्लाह को हाजिर और नाजिर, हाजिर का तो अकीदा सही नहीं, लेकिन बहरे के हम लोग सलफी हैं, इस अल्फाज से आप लोग हम पे कमेंट ना करें। अगर वाकई अल्लाह का हवाला देकर ये कसम उठा लेते हैं 3 हर्फ में कि मैं हफीजुर रहमान अल मक्की आज से कसम खाता हूं कि मैं बारात खुद नहीं जाऊंगा और जिस बारात में जहेज का मामला हो उसमें निकाह नहीं पढ़ाऊंगा, तो मिनटों में 200 आदमी खुद उलमा सुधर जाएंगे। ये तो पहला नुक्ता हुआ कि पहले आप कसम खाएं कि आज से हतमी फैसला कर ले कि हम बाराती खुद नहीं जाएंगे, क्योंकि हमारे इस्लाम में बाराती नहीं है। शायद कि उधर से मैं तौसीक चाहता हूं, मेरी आवाज जा रही है कि नहीं उलमा इकराम? आवाज नहीं आ रही है तो बोल दें। जी जी, तो पहला नुक्ता ये है कि 200 आलिम हम मिनटों में सुधर जाएंगे। कसम खा लें कि आज से न बाराती जाएंगे, चाहे मेरे खाला का, मामू का, फूफा का, हत्ता के, जैसे मैं बाद में उस पॉइंट पे आना चाह रहा था लेकिन वह पहले ये जुमला आ गया कि हमारे धनुषा जिला में ऐसे है, अल्लाह अकबर, काबिल इक्तिदा शख्सियत, जिन्होंने अपने बेटे को कान पकड़ के बाराती के जीप से निकलवा दिया। और शायद कि आप लोग इशारा समझ भी सकते हैं। कहा कि बेटा ने कहा कि भैया, बड़े भैया की शादी है, हम जाएंगे। उन्होंने कहा कि नहीं बेटा, आज जाओगे, बाराती शुमार है, शादी के बाद दूसरे दिन जाना मेहमानी करने के लिए।
तो पहली बात यह है मेरे दोस्तों कि ये बाराती शरीयत इस्लाम में हमें वजूद है ही नहीं, लेकिन यहाँ बड़े एहतराम के साथ उलमाए किराम के शान में एक बात कहना चाहता हूँ कि जब अगर हमारे इलाके में किसी दोस्त की शादी हो जाए और उसको दावत न मिले तो नाक भाव पुराना शुरू कर देते हैं और पाग पगड़ी उठाना शुरू कर देते, अरे वो अपने बच्चे की शादी कर लिया, मेरे दावत भी नहीं मिली। लेकिन कुर्बान जाए हमारे आकाए नामदार ताजदार मदनी अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी पे कि खुद सहाबा किराम जो अपने आका और अपने रसूल की जिंदगी पे एक इशारे पे जिंदगी निछावर करने वाले, जो बगल में शादी हो गई लेकिन सैयदुल मुरसलीन को दावत तक नहीं मिली। तो मेरे दोस्तों यहाँ क्या है, दावत खाना सही है, दावत देना सही है, लेकिन खास तौर पे ऐसे मौके पे जहां पे बुराई का जन्म ले, जहां पे एक फितना है, एक मोहलिक मर्द पिनपता जा रहा है मुआशरे में, हम उलमाए किराम से अर्ज करना चाहते हैं कि ऐसे मौके से खुसूसन आप भी ना जाएं, क्योंकि मैं शेख हफीजुर रहमान अगर दावत दूं फिर भी कहें कि शेख आपका की दावत मकबूल तो है, लेकिन शादी के बाद दूसरे दिन आप घर आऊंगा। लेकिन आज मुझे आना इस बड़ी बाराती में देखेंगे हैं फला अल्लामतु शेख साहब आए हुए थे, आवाम कहेंगे भाई फला फला बाराती में आए थे, आप चाहे मेहमान बन के जाएं या बाराती बन के आए, वहां पे यही होगा, बुराई के जगह पे बुराई में मुलव्वस हो जाएंगे। तो पहली फुर्सत ये है मेरे दोस्तों कि आप बाराती में खुद शरीक न हो और ये तहैया कर लें कि आज से ना किसी को हम मौलवी को दावत बाराती की दावत देंगे और न हम खुद जाएंगे। अगर बाई देवे कोई ये कहे, कहीं बात मेरी लंबी हो जाए लेकिन आज इजाजत दे दीजिए, कि ये कहे कि भाई आप सिर्फ एक तरफा जज्बात में क्यों बोल रहे हैं, अपने बेटे की शादी में अपने सकत पर फला फला को तो बुला सकते हैं, ये वलीमा की बात मेरे, लेकिन हम कह रहे हैं यहाँ बाराती लड़की की शादी में आप न जाइए न किसी को बुलाइए। पहली बात तो कहा था कि कसम सब लोग इस ग्रुप में उठा लें 200 उलमा कि हम आज से बाराती नहीं जाएंगे, और जिस बाराती में जहेज का मामला हो उसकी हम निकाह नहीं पढ़ाएंगे। पता ये चला अगर 200 उलमा अगर एक कारवां बन के निकले इस्लाह मुआशरे के लिए, मैं खुदा की कसम कहता हूं इस प्लेटफॉर्म से मिनटों तो नहीं बल्कि नहीं कह सकता, लेकिन हफ्तों नहीं, महीनों नहीं, साल के अंदर में ये सारा इस्लाह हो जाए। अब रह गई बात के तीसरे नुक्ता कि हम ये कह के जाएंगे सारी ये 200 दिल्ली जमीयत धानुषा के उलमा सारे लोग हलफ उठा लिए, कसम खा लिए, तो अब न बाराती जाना है न किसी उलमा को बुलाना है, सीधी सादी शादी करनी है, क्योंकि सबसे बाबरकत शादी वो है जिसमें कम खर्च हो। तो अल्हम्दुलिल्लाह न हम बुलाएंगे किसी आलिम को, न हम किसी आलिम के बेटी की शादी में जाएंगे, बात खत्म। तीसरा पॉइंट ये है कि कहा कि हाँ हमारे मुआशरे में तो उलमा ने कसम खा लिया कि न हम जहेज वाले निकाह भी नहीं पढ़ाएंगे, न हम किसी साथी के शादी में हम दावत में जाएंगे, गर्चे वो बेटी वाला करोड़पति क्यों न हो, वो अपनी ख्वाहिश हजरत साहब धानुशाही में शादी हुए तो कहते हैं क्या, हाँ फला फला पूरे जिले के सदर और सेक्रेटरी और फला फला जिम्मेदार सब हमारे घर पे आइएगा, न तक मेरी नाक कट जाएगी, और हम जिस हैसियत के मालिक है मेरे दरवाजा पे भी होना चाहिए। क्या होने लगा? आवाज टकरा रही, क्या हो रहा है शेख? माजरत। चलिए ठीक है, अभी हो गया, बताइए। हाँ तो बहरे कैफ ये कहते हैं कि हम जिस हैसियत के हम शेख हफीजुर रहमान साहब हमारा साथी फला फला है उसको दावत न दूं बेटी में? नहीं दोस्तों, जब अगर मिटाना चाहते हैं माशरे से इस लानत जहेज को तो आप दावत कतई तौर पे नहीं दीजिए और तकलीफ भी महसूस मत कीजिए, आप न जाइए न बुलाइए। अगर रह गई बात के उलमा भी जब न जाने पर अहद कर लिया, कसम खा लिया, जहेज के मिटाने की नियत से उन्होंने कहा कि हम निकाह भी नहीं पढ़ाएंगे, हाँ कुछ ऐसे लोग हैं उलमा में भी हैं और कुछ मुआशरे में ऐसे लोग हैं छुपे रुस्तम जो कहेंगे मैं नहीं लिया हूँ, हाँ हम जहेज नहीं लिए हैं, लेकिन कैसे पता चलेगा जहेज नहीं लिया है, कैसे हम निकाह नहीं पढ़ाएंगे? उसके लिए मैंने गुज़श्ता में कहा था, और ये आखिरी नुक्ता है मेरा, कि आप वहां पे जब तहैया 200 उलमा कर लेंगे तो ये भी तहैया कर लीजिए, स्टेज पे जाइए और कहिए कि इस शादी का जिम्मेदार कौन है, उसके वालिद जिंदा है अल्हम्दुलिल्लाह, उसकी लंबी उम्र दे। उनको कहिए कि आप अपने बेटे की शादी में जैसे कैसे कहते हैं कि इतने 3 तोला आपको बेवज आपके ज़ौजत में दी जाती है, कबूल किया, सबसे बच्चों को कहने से पहले उसके वालिद साहब को इकरार कराइए
کہ کیا आपने अपने बेटी की शादी में जहेज लिया है, अल्लाह को हवाला देकर बताएं। तो वो तो फौरन कह देंगे, क्योंकि सेटिंग कहाँ से है, सेटिंग है खाला मामू से। यहाँ अपना हम, हाँ वल्लाह हमने नहीं लिया है। तो वहां पे ये नुक्ता मैं दोबारा कह रहा हूं कि ये कह करके अल्लाह का हवाला दीजिए कि ये जहेज में ना मैं लिया हूं, न मेरे किसी रिश्तेदार की सेटिंग है, और न लड़की की माँ, न लड़की की फूफी, न लड़का ने, किसी ने डिमांड नहीं किया है। इस तरह से उनको भी हलफ लीजिए, ताकि स्टेज ही पर रब का हवाला देके गवाह बनवा दीजिए, कयामत के दिन उसका हश्र होगा। तो इस तरह मेरे दोस्तों, हम खुद ना जहेज में जाएं, और सारे उलमा कसम खा लें कि ऐसी शादी जिसमें बारात और जहेज का मामला हो, हम निकाह नहीं पढ़ाएंगे। और फिर जो तीसरे गार्जियन को भरी महफिल में उनको कहलवाएं कि आप स्टेज पे ऐलान कीजिए कि हमने जहेज नहीं लिया है। इस तरह से तीनों खुतवात अमल करेंगे, कल खत्म हो जाएगा। लेकिन क्या ग्रुप पे ये मैं 3 जुमला लिख दूं कि मैं कसम खाता हूं, मैं हफीजुर रहमान अल मक्की, आज से मैं किसी बाराती में न जाऊंगा और न बाराती में किसी उलमा को बुलाऊंगा, सीधी सादी सुन्नत के मुताबिक 2 चंद अफराद पे मुश्तमिल शादी करूंगा। तो इस तरह के कोई सारे लोग इकरार कर पाएंगे? नहीं इकरार करेंगे। आज मैं मौलाना कासिम आलियावी साहब से कहता हूं कि लिख के डालिए और देखिए कितना उलमा इस पर तनफीज करते हैं। बल्कि असद अफसोस तो उस वक्त होता है कि कई बाराती में हम भी उस बुराई में मुलव्वस हुए, लेकिन जब वहां गया देखने के लिए, अल्लाह अकबर, हमारे जमात के कायदीन 4 चक्के में लंबी पगड़ी, 2 किलो सुरमा, सदरी पहने हुए फजीलतुल अल्लामा साहब यहाँ पहुंच रहे। ये कौम के रहबर है जो मिंबर और मेहराब पे लंबी तकरीर अच्छेदार करेंगे और इस्लाह का होगा। वल्लाह कहता हूं, बल्कि मेरा मजमून बल्कि खिताब करना ही चाह रहा था कि मुनाफिकों ने क्या कहा कुरान के अंदर, पहले सूरह में कहा, जब अल्लाह ताला ने कहा कि तो इफसाद मत फैलाओ, तो उन्होंने मुनाफिक कहा नहीं मैं इफसाद नहीं चाहता हूं, इस्लाह चाहता हूं। बहरे के क्या मुनाफिक से इस्लाह मुमकिन है? इस आयत के मफहूम मुखालिफ पे गौर कीजिए कि मुनाफिक कह रहा है इस्लाह चाहते हैं, अल्लाह ताला कह रहे हैं तुम इफसाद फैला रहे हो। तो मेरे दोस्तों, अगर कोई इंसान दिल में रहे कि हाँ तकरीर करके जरिए जहेज खात्मा होना चाहिए और खुद जाके अपने अमल पे शरीक हो जाएं, अपनी बेटी में बड़े बड़े सदरे जिला, सदरे मरकजी जमीयत को दावत दें, ऐसे इस्लाह मुमकिन है? नहीं मुमकिन है। आपके मैं अकीदे में निफाक नहीं कहता हूं, लेकिन अमल में निफाक है उलमा के अंदर कि जब तकरीर का वक्त आए तो खूब जोरदार बोल दे, और जब तनफीज का मामला आए, अमल करने का मामला है, तो पीछे हट जाते हैं। हाँ अस्सलाम वालेकुम, कब आना हुआ शेख? ये सारी मुलाकात का मजमा ये बराती होता है, फला जिला से मिंबर, फला बड़े बड़े नेता, फला को नहीं बुलाया तो तकलीफ। तो इसलिए मेरे दोस्तों, ये कभी ना खत्म होगा जब हम उलमा आगे नहीं बढ़ेंगे और कदम नहीं निकालेंगे। इसलिए मैं कहता हूँ कासिम आलियावी हफीज़हुल्लाह से कि ये चंद लिख करके भेजिए और आज ही से शुरू कर दीजिए। देखते हैं कितने उलमा जो है इसमें आते हैं और कसम खाते हैं ग्रुप पे कि मैं आज से शादी में न शरीक होऊंगा और न शादी में किसी आलिम को अपनी बेटी की शादी में दावत दूंगा। आज ही पता चल जाएगा। और खुदा की कसम, अगर वाकई 1 घंटा के अंदर पूरे ग्रुप या 1 दिन में पूरे ग्रुप का आदमी हलफ उठा लेता है, तो 200 उलमा को खुद सुधर जाने से मैं अल्लाह ताला पे पूरा उम्मीद करता हूं कि ये कारवां चल पड़ेगा और इसकी इस्लाह के आसार बहुत ही मुस्तकबिल करीब में नजर आना शुरू हो जाएंगे। मैं इन्हीं बात के साथ रुखसत होता हूं। जज़ाकुमुल्लाह खैरा, बारकल्लाहु फीकुम, वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माशाअल्लाह, शादियां दुश्वार तर करने लगी रस्म जहेज, शादियां दुश्वार तर करने लगी रस्म जहेज, लब पे आसानी से आता ही नहीं दुख्तर का नाम। मैं बहुत ही शुक्रगुजार हूँ हज़रत शेख हाफिजुर रहमान वली अल मक्की का, जिन्होंने बहुत ही अच्छे अंदाज में खिताब किया। मुकम्मल खतीबाना अंदाज था, आवाज में ललकार थी और स्टेज गूंज रहा था। अगर आप हमारे साथ आते रहें, हमारी आवाज में आवाज मिलाते रहें, तो हम उम्मीद करते हैं कि एक दिन ये आवाज हर घर तक पहुंचेगी। आपने कसम उठाने की बात कही है, इंशाअल्लाह आप अगर इसी ललकार के साथ कौम को ललकारते रहें तो ये आवाज हर कान तक पहुंचेगी, ये आवाज हर दिल तक पहुंचेगी और एक दिन ये आवाज हर घर तक पहुंचेगी और हम सब के सब आपके साथ होंगे।
بس ہمیں ایک قائد کی تلاش ہے، کوئی قائد ملے جو قائدانہ انداز میں اور مکمل دلچسپی کے ساتھ کام کرے اور میدان میں آئے۔ بہت ہی اچھے انداز میں آپ اپنی باتوں کو پیش کر رہے تھے، سننے میں بہت اچھا لگا۔ انشاءاللہ آپ کی باتوں کو یہ انٹرنیٹ کی دنیا ہمیشہ کے لیے محفوظ کر لے گی۔ اللہ رب العالمین آپ کو جزائے خیر دے اور اس کا بہتر بدلہ عطا کرے۔ اور شیخ نے جو باتیں کہی ہے اس پر آپ نے شیخ قاسم کو مخاطب کیا ہے، ہم امید کرتے ہیں کہ شیخ قاسم حفظہ اللہ اس پر توجہ دیں گے اور انشاءاللہ اس کو آگے بڑھائیں گے اور اس پر کام کریں گے انشاءاللہ۔ سامعین، اب اس کے بعد ہمارے بیچ اور بھی مولانا ہیں، اگر آپ ان میں سے کوئی ہیں، اگر وہ بول سکتے ہیں تو میں آپ کو دعوت دیتا ہوں اور موقع دیتا ہوں کہ سلام الدین صاحب پڑھیں گے۔ میں 1 منٹ میں تھوڑی سی بات رکھنا چاہتا ہوں، معذرتاً پھر میں موقع لے رہا ہوں۔ جی شیخ جی، اگر اجازت ہو تو۔ اجازت ہے جی الحمدللہ ابھی شیخ محترم کا خطاب ہو رہا تھا، اور واقعی مطلب یہ ہے کہ انہوں نے جو پہلو مقدم رکھا وہ علماء کرام کو رکھا، اور یہ سچ ہے، اس میں کوئی شبہ کی بات نہیں ہے کہ اس کے سب سے پہلے ذمہ دار ہم اور آپ ہیں، علماء کرام ہیں۔ ہمارے یہاں ضلع کپل وستو میں اس سے آج سے یعنی 2-3-4 سال پہلے قبل ہمارے مولانا فضیلت الشیخ عبدالرحیم مدنی انہوں نے جہیز کے موضوع کو لے کر کے اس کی تحریک چلائی، اور ایک بار ایک گاؤں کے اندر جب یہ گئے تو لوگوں کو اکٹھا کیا، اور جیسے ہی بولنے کے لیے کھڑے ہوئے اسی مجمع میں سے ایک آدمی جو کسان تھا، ہاتھ میں لاٹھی بھی لیے ہوئے تھا، لے کر کے کھڑا ہو گیا۔ اس نے کہا مولانا اب آپ آئے ہیں، جب آپ نے اپنے بچی کی شادی کر لی، اپنی بیٹی کی شادی کر لی، اب آپ آئے ہیں، آپ کا تو مسئلہ حل ہو گیا ہے۔ رہی بات ہم لوگوں کی، تو ہم لوگوں کی یعنی بیٹوں کی یا بیٹیوں کی شادی کیسے ہوگی؟ انہوں نے کہا آپ جس راستے سے آئے ہیں اسی راستے سے واپس چلے جائیں، ورنہ ہم لوگوں کی جو جماعت ہے، جو ہم لوگ یہاں جمع ہوئے ہیں، ابھی آپ کے اوپر پوری طرح سے ہم لوگ ٹوٹ پڑیں گے اور آپ لاچار ہو کر کے یہاں سے آپ کو بھاگنا پڑے گا۔ بہرحال وہ بیچارے وہاں سے بھاگ نکلے، اس کے بعد انہوں نے وہ تحریک بند کر دی۔ مسئلہ یہ ہے شیخ کہ اس موضوع پہ اس کے جو نکات ہیں وہ یہ کہ اس کو کیسے بند کیا جائے۔ دیکھیے اس چیز کو ہم اور آپ جانتے ہیں کہ جہیز یہ کوئی اتنی آسان چیز نہیں ہے کہ یہ بند ہو جائے گی۔ اگر ہم 200 نہیں، ہم اگر 500 علماء کرام حلفیہ لے کر کے اس بیان دے دیں کہ ہم لوگ شادی میں نہیں جائیں گے، تو میں تو نہیں سمجھتا ہوں کہ ہمارے حلفیہ لینے سے یا ہمارے قسم کھانے سے کسی کی شادی رک جائے گی، قطعاً نہیں رکے گی۔ ہمیں ہاں علماء کرام کے اندر سدھار آ جائے گی، علماء کرام اس چیز کو لے کر کے یعنی بائیکاٹ ہو جائیں گے، اور الحمدللہ علماء کرام ہی اس چیز کو زیادہ سمجھ رہے ہیں۔ جہیز کی موضوع کو لے کر کے علماء کرام ہی اس کو زیادہ سمجھ رہے ہیں اور اس سے اجتناب و پرہیز بھی کر رہے ہیں۔ اور تو ایسے موقع پر اس کے وجوہات تلاشنی چاہیے، یعنی اس کا سد باب کیا ہو سکتا ہے، کس طریقے سے اسے مٹایا جا سکتا ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ اگر علاقے میں کوئی ایسا عالم ہے جو یعنی بہت معروف و مشہور ہے، جس کے تقوی طہارت لوگوں کے اندر مشہور ہے، ایسے عالم کو لوگ عام طور پہ نکاح پڑھانے کے لیے بلاتے ہیں۔ اگر ایسا عالم قسم کھا لے گا کہ ہم ایسے شادی میں نہیں جائیں گے، تو پھر کیا اس کے نکاح کوئی پڑھائے گا نہیں، یا نکاح اس کے نہیں پڑھا جائے گا، کیونکہ اسی گاؤں کے اندر جو لوگ پڑھاتے ہیں مکتب میں، اور کچھ ایسے علماء کرام ہیں جو اس طاق میں لگے رہتے ہیں کہ اگر وہ جلدی سے آؤٹ ہو جاتے اور ہمارا نمبر آ جاتا، ہم جو ہے آگے آ جاتے اور ہم نکاح پڑھا دیتے، ہم کو اس کا پیسہ مل جاتا۔ تو ایسا علماء کرام جو حلف لے کر کے اپنے گھر کے اندر بیٹھ جائے گا، اس کو نہیں معلوم ہوگا کہ اس شادی میں کون وہاں پہ پہنچا ہوا۔ ایسے لوگ پہنچ جائیں گے جو وہاں کے مکتب کے لوگ ہوتے ہیں، جنہیں پیسے کی تڑپ ہوتی ہے، پیسے کی بھوک ہوتی ہے، وہ تو جا کر کے نکاح پڑھا دیں گے، تو معاملہ تو رکے گا نہیں۔
اور کچھ لوگ ایسے بھی اگر آپ جا کر کے وہاں باقاعدہ یہ حلفیہ ان سے بھی بیان لیں کہ آپ لوگ جہیز نہ لیں نہ تو دیں، سامنے تو لوگ کہہ دیتے ہیں کہ ہم نے جہیز نہیں لیا ہے، لیکن اندرونی طور سے سارا معاملہ بالکل سیٹل ہو کر کے پہلے سے رکھا ہوا ہوتا ہے. تو یہ معاملہ بہت اتنا آسان نہیں ہے شیخ، اتنا آسان معاملہ نہیں ہے یہ، اور اتنا جلد یہ سلجھنے والا معاملہ بھی نہیں ہے. ہاں اس طریقے سے ہم لوگ بیانات کرتے ہیں، وعظ کرتے ہیں، نصیحت کرتے ہیں، الحمدللہ ایک کے بعد دیگرے تیسرے چوتھے پانچویں کسی نہ کسی کے اندر تو اصلاح ہوتی ہی ہے، لیکن اتنا آسان میں نہیں سمجھتا ہوں کہ اتنی جلدی اس کی اصلاح ہو جائے گی. بہرحال دوسری بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر کوئی ایسا عالم جو کسی کی شادی میں نہیں جاتا ہے اور اپنے گھر بیٹھا ہوا ہے، کیا ایک عالم دین دوسرے کسی عالم دین کے یہاں، یہ نقطے کی بات میں بتا رہا ہوں شیخ، ایک عالم دین دوسرے عالم دین کے یہاں بغیر کسی ذات بھید بھاؤ کے شادی کرنے کے لیے تیار ہوگا؟ اور اگر تیار ہوتا ہے تو پہلے اس چیز کو انجام دے کہ ٹھیک ہے ایک عالم دین کی بچی اگر یہ معاملہ آ جائے کہ ایک عالم دین یہ قسم کھا لے نہ میں جہیز دوں گا نہ میں جہیز لوں گا، تو کیا اس کی بچی کی شادی ہو جائے گی؟ ایسا نہیں ہے کہ ایک عالم کو عالم ہی مل جائے گا، یہ بھی کوئی ضروری نہیں. لوگ تلاشتے رہتے ہیں کہ ہمیں عالم دین مل جائے، ہمیں حافظ مل جائے، قاری مل جائے، لیکن نہیں ملتا ہے. بحالت مجبوری وہ کسی ایسے شخص کو تلاش کر لیتا ہے جن کے یہاں وہ اپنی بچی کی شادی کر دیتے ہیں اور وہ اچھے خاصے پیسے والے ہوتے ہیں، اور اس کے مجبوری کے تحت وہ تمام اشیاء دے کر کے جہیز کے نام پہ جو بھی چیزیں ہیں تمام چیزیں دے کر کے اپنے بچے کو رخصت کرتے ہیں. وہ تو کہیں نہ کہیں بہت ساری مجبوریاں سماج و معاشرے کو دیکھتے ہوئے نظر آتی ہیں. علماء کرام اس کو لے کر کے بہت فکر مند ہے، الحمدللہ علماء کرام جہیز کی موضوع کو لے کر کے بہت فکر مند ہے، لیکن ہم علماء کرام کو آپسی رشتہ داریاں بھی بڑھانے کی ضرورت ہے کہ اگر ایک عالم دین کی بچی سے کوئی ایک ان پڑھ گھرانے کا شخص یا کوئی مالدار گھرانے کا شخص نہیں کر رہا ہے تو اب کوئی عالم اس کے لیے بڑھے کہ مولانا آپ فکر نہ کریں، آپ کی بچی کی شادی ہم اپنے بچے سے کریں گے، آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا. تو اس طریقے سے بھی ہمیں آگے بڑھنا چاہیے. اللہ تعالی ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. چلیے ماشاءاللہ وقت کی بڑی قلت ہے اور آپ لوگوں کے پند و نشائر ماشاءاللہ بہت ہی زبردست رہا آج کا. ایک منٹ بڑی چاہیے خدمات بس. ہے، سب لوگ فکر مند رہیں. اور شیخ حفیظ الرحمان صاحب نے بھی جو کہا ہے وہ بھی بہت ہی اچھی بات ہے. جب تک ہم لوگ حلفیہ کچھ باتیں نہیں کریں گے، جب تک علماء کرام اس کے اوپر ٹھوس کوئی قدم نہیں اٹھائے گا، تب تک جو ہے اس معاملے کو ہم لوگ نہ روک سکتے ہیں نہ کر سکتے ہیں. بہرحال موضوعات تو بہت سارے ہیں اور بہت سارے پہلو ہیں اس کو بند کرنے کے. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ سب کو جب ہم نکاح پڑھاتے ہیں تو سب سے پہلے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ کہتے ہیں کہ بھائی تقوی اختیار کرو، ہے نا، متقی بنو، پرہیزگار بنو، ہے نا. اور تینوں آیت کے اندر یہ چیزیں مذکور ہیں. میرے بھائی سب سے پہلے ہمیں اس کو تقوی بتانے کی ضرورت ہے. اس کے بعد یہ کہنا ہے کہ جہیز کا مال جو آپ نے ناجائز طریقے سے لیا ہے، آپ کو جو دیا جا رہا ہے، قیامت کے دن وہ آپ کے گردن کے اوپر لادا ہوا رہے گا اور اس دن آپ کو اس کا بدلہ دینا پڑے گا جو نیکی کی شکل میں ہوگا. جب تک انسان کو ڈرائیں گے نہیں اور جب تک قیامت کا اس کا خوف، جہنم کا خوف اس کے ذہن میں نہیں آئے گا، اللہ کا خوف اس کے ذہن میں نہیں آئے گا، تب تک ہم اس معاشرے کو نہیں بدل پائیں گے. کوشش بس ایک ہم منٹ. لوگوں کی کو ضرور کرنی چاہیے اور ہم لوگ کر رہے ہیں انشاءاللہ. جس طرح سے بھی ممکن ہو سکے پہلے حلفیہ قسم لیں علماء کرام، اس کے بعد لوگوں کے سامنے بھی جانے کی کوشش کریں گے، ہے نا. جو بھی علماء کرام ان کو پہنچانے کی کوشش کی جائے گی، وہاں تک بھیجنے کی کوشش کی جائے گی، گاؤں سماج میں جانے کی کوشش کی جائے گی اور انشاءاللہ اس کو ہم لوگ بھیجنے کی کوشش بھی کریں گے. کلام بس ایک الدین منٹ. صاحب کوئی نعت وغیرہ پڑھیں گے؟ ایک منٹ چاہ رہا تھا تاکہ کہیں وہ جو نقطہ جو شیخ نے ابھی رکھا ہے عبدالواحد اب صرف صاحب نے، اس کے تعلق 10 منٹ رہ گئے ہیں جس میں سارے کام ہم کو نپٹانے ہیں، تھوڑا جلدی کریں آپ. جی جی کوئی بات نہیں. جی شیخ ایک منٹ میں چاہ رہا تھا. جی شیخ میں یہ چاہ رہا تھا کہ شعر کا بلکہ سلسلہ بند کر دیا جائے. اس میں بہت اچھا نقطہ ہے، نقاش چل رہا ہے، تبادلہ خیال چل رہا ہے، اس لیے ایک منٹ مجھے اجازت دی جائے. جی اجازت اجازت ہے؟ جی جی اجازت ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی شیخ محترم نے ایک بہت اہم تیسرے نقطے کی طرف اشارہ کیا ہے، لیکن جو میں نے 3 نقطہ رکھا ہے شیخ، اس کا مقصد یہ نہیں کہ آنن فانن یہ جہیز ختم ہو جائے گا، اور مجھے بھی یقین ہے. لیکن کیا ہے کہ اگر 200 ہم ابھی خطاب صرف کر رہے ہیں ضلع دھنوشا کے علماء، اس خاص طور پہ گروپ کو لے کر کے، اگر ایک ضلع میں یہ کارواں نکل جاتا ہے، 200 علماء اگر سدھر جاتے ہیں اور براتی میں خود نہ جاتے ہیں، نہ کسی علماء کو اپنی بچی کی شادی میں بلاتے ہیں،
اور یہ جو کہیں کہ اسٹیج پہ جا کر کے بچی والے کو قسم کھلائیں یا نہیں قسم تو غصہ آ جائے تو یہ کہے کہ آپ اللہ کو حوالہ دے کے بتائیں کہ جہیز نہیں ہے، تو آنن فانن اس کا اثر نہیں آئے گا. لیکن جب ٹھیک ہے 200 علماء ایک جگہ ہو جائیں گے اور کوئی چور علماء ہے ہی اگر تاک میں لگے ہیں، اس کی فکر نہیں کرنی ہے. جب ہم باہر نکل جائیں گے تو یہ اثر دکھلائے گا یقیناً دکھلائے گا. اس لیے کم سے کم یہ گروپ کے 200 علماء متفق ہو جائیں اور اسی پہ چلتے رہیں، عمل کرتے رہیں، خود نشادی جائیں. کم سے کم براتی کا سسٹم تو ختم ہو جائے گا، کیونکہ علماء سب کو جو ہے بہت سارے لوگ عزت کے ساتھ بلاتے ہیں صدر صاحب کو دعوت. بھائی صدر صاحب کیوں جائیں گے بیٹی کی شادی میں؟ اس لیے ہم علماء پہلے وعدہ کریں، نہ ہم کسی عالم کو بلائیں گے اور نہ کسی عالم کے بچی کی شادی میں جائیں گے. تو پہلے برات کا یہ سلسلے کے خاتمے کا یہ شور مچے گا پورے ضلع میں. پھر مزید یہ ہے کہ اگر وہ شادی میں جا کر اگر کسی عالم جاتے ہیں، اگر ان سے حلفیہ لیتے ہیں یا اللہ کا حوالہ دے کے اور ڈراتے ہیں کہ بھائی اگر آپ نے لیا ہے، یہ ہم لوگ جو ایک آندولن انقلاب چھیڑا ہے، تو اگر آپ لے رہے ہیں جہیز تو اللہ کا حوالہ دے کر کہہ رہا ہوں قیامت کے دن گردن میں جو ہے آپ کو باندھا جائے گا. تو اس طرح جو ہے جہیز کا میں نہیں کہہ رہا ہوں فوراً ختم ہو جائے گا. جہیز کے خاتمے کے لیے وہ جو ہے میراث کا معاملہ بنے گا اور دوسرے معاملہ ہے. لیکن پہلے یہ قدم اٹھا کے حلفیہ لے 200 علماء اس کے خاتمے کے لیے اگر حلف لے لیتے ہیں اس گروپ میں، تب میں سمجھوں گا کہ علماء مخلص ہیں. وہ تقریر کرنے سے کچھ نہیں ہونا. قدم بڑھائیے، 200 عالم پہلے شادی میں نہیں جائیے. 1-2 چور ایمان ہوں گے اس کی پرواہ نہیں کیجیے، جانے دیجیے. کم سے کم علاقے میں پتہ چل جائیں گے نا فلاں فلاں علماء، فلاں فلاں مدنی، فلاں فلاں حضرات سب جو ہے اس کے خلاف ہیں اور نہیں جاتے. جو جائیں گے چورا کر کے اس کو خود شرمندگی ہوگی کہ میں ہمارے گروپ سے یہ کون تھا جنہوں نے قسم نہیں اٹھایا تھا. ان کو جا کے علماء للکاریں گے کہ آپ نکاح پڑھانے گئے ہیں، کیا اس چیز کا جائزہ لیے ہیں کہ انہوں نے جہیز لیا ہے کہ نہیں؟ اگر نہیں لیا ہے تو ہر علماء اپنے فردی طور پہ اس کو للکاریں کہ آپ کیوں نکاح پڑھائے ہیں. اس طرح سے انشاءاللہ وہ خاتمہ ہوگا. اور جہاں تک یہ کہا کہ ایک عالم دوسرے عالم یا ذات برادری کا معاملہ، یہ بہت امپورٹنٹ شک اٹھائیں، لیکن وقت کی قلت ہے اور نقاش کرتا انشاءاللہ مستقبل میں کریں گے. جزاکم اللہ خیر، بارک اللہ فیکم. جی کلام الدین صاحب. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ورنہ کچھ نہیں ہے، کہنے کی بات یہ ہے کہ ہمارے معاشرے کے اندر جہیز کا مسئلہ واقعی بہت ہی بڑا مسئلہ ہے، اور وہ کس طرح ختم کیا جائے. جیسے جہیز کے بعد ایک میراث کا بھی مسئلہ ہوتا ہے کہ ہم اپنے بچیوں کو میراث نہیں دیتے، ہے نا، یہ بھی مسئلہ بہت بڑا ہے. اس کے بعد جو ہے تحفہ تحائف یا لین دین کا معاملہ جو ہوتا ہے، جو گھر لڑکی والوں کی طرف سے چپکے سے دے دیا جاتا ہے، تو یہ سب سارا معاملہ ہے ہمارے معاشرے کے. کیونکہ ہمارا معاشرہ ہندوانہ رسم و رواج میں پل رہا ہے اور ہم لوگوں کے قریب ہندوانہ رسم و رواج منڈلا رہا ہے، لہذا ہم اس چیز سے ابھی فی الوقت دور نہیں ہو سکتے. اس چیز کو، اس برائی کو، اس جو ہے نا مطلب پنپتے ہوئے جو ہے مطلب برائی کو مٹانے کے لیے واقعی ہم سبھی علماءوں کو ایک جٹ ہونا پڑے گا اور ایک پلیٹ فارم پہ کھڑا ہونا پڑے گا. اس کے بعد ہی ہم کو آواز اٹھانا ہے. قسم لینے سے کام نہیں چلے گا، اس کے خلاف ہم کو آواز بھی اٹھانا پڑے گا. سیکریٹری، خزانچی، گاؤں گاؤں کا جو بھی ہے سب کو جمع کر کے ایک جگہ ان لوگوں سے بھی حلف لیا جائے گا. ہمارے علماء تو حلف لیں، اس میں میں متفق ہوں اس بات پر، لیکن جہاں کے جو گاؤں کی جو سیکریٹری ہے، جہاں کے جو ہے مطلب خزانچی اور جو رہبر معاشرہ اپنے آپ کو جو آدمی کہتے ہیں، یا راجنیتی لائن سے ہو یا جو ہے معاشرتی لائن سے ہو، یا جو ہے مطلب علماء ہمارے ہوں، سارے کے سارے ایک پلیٹ فارم پر جب تک نہیں جو ہے مطلب جمع ہوں گے اور سارے کے سارے اس بات پر متفق نہ ہوں گے کہ جہیز لینا اور دینا اور بارات میں جو ہے مطلب شامل ہونا یا بارات کو جو ہے مطلب مدعو کرنا، ان چیزوں پر ہم جب تک جو ہے مطلب روک نہیں لگائیں گے تب تک یہ چیز ختم نہیں ہونے والی ہے، یہ بیماری ختم نہیں ہونے والی ہے. اس میں سب سے پہلے ہمارے علماؤں کو جو ممبر پہ چل کے بڑے بڑے جو ہے مطلب یہ کرتے ہیں، تقریر کرتے ہیں، ہے نا، اس پر دھیان دینا پڑے گا. اور اس چیزوں کو خود عملی، جیسے شیخ حفیظ الرحمان صاحب نے کہا کہ عملی نفاق ہمارے علماء کے اندر ہے، اور واقعی ہے. عملی نفاق ہمارے علماء میں ہے. کہتے کچھ اور ہیں اور کرتے کچھ اور ہیں. آپ کے منہ پر کچھ اور کہہ دیں گے، پیٹ پیچھے جا کے کسی اور کے پیچھے کچھ اور کہہ دیں گے. تو یہ ایسا نہیں ہے. خلوص للہ، کیونکہ جب شادی کے وقت، نکاح کے وقت پڑھایا جاتا ہے یا ایھا الذی تقوا کا لفظ ہے،
अल्लाह से डरने का या तकवा इख्तियार करने का लफ्ज है, तो वहां पर ध्यान देना चाहिए कि हमको जब वहां शादी के वक्त डराया जाता है अल्लाह रब्बुल आलमीन या तकवा इख्तियार करने का जो है मतलब की बात आती है, तो हमारे अंदर अमली जो है मतलब उस पर अमली जामा उन चीजों को हम पहनाए और निफाक हमारे अमल में न हो और न ही हमारे दिल में हो, तब जाकर के जो है मतलब हलफ लेने के बाद, जो मैं एक पॉइंट की बात बताया हूँ, हलफ लेने के बाद हमें और आपको चाहिए कि उस हलफ को आप गांव के जो रहबर हैं, गांव के जो सेक्रेटरी या खजांची या जो मुखिया है राजनीतिक लाइन से या माशरती लाइन से जो भी है, सबों से जो है मतलब हल्फ उठाना पड़ेगा, हल्फ देना पड़ेगा। उसके बाद इस अमल को जो है मतलब आगे बढ़ाना पड़ेगा, तो ही हम कामयाब हो सकते हैं, वरना हमारे हलफ उठाने से सिर्फ कामयाब हम लोग नहीं हो सकते हैं। इसमें वो लोग भी जो है मतलब शामिल उन लोगों को भी करें जो हमारे गांव के चलाने वाले मुखिया होते हैं, जो जिम्मेदार होते हैं, जो सेक्रेटरी और खजांची जिसको बनाते हैं, उन लोगों को भी शामिल करना पड़ेगा। उसके बाद ही हम इसमें कामयाब हो सकते हैं, होने वाले हैं। उसके बाद रह गई जहेज वाली बात, तो ये है, लेकिन हमारे मुआशरे में सबसे बड़ा जो है बड़ी बीमारी जो है, हम लोग जो है अपने बच्चियों का जो है मतलब ये विरासत खा जाते हैं। ये बहुत बड़ा मसला है, बहुत बड़ा मसला है शेख। ये हम लोगों के अंदर इन चीजों को सुधारने का जो है मतलब सबसे पहले ये कानून नाफिज करना पड़ेगा। जिस तरह से सदक़तुल फितर हम लोग जो है मतलब अपने मदरसा में यूज कर लेते हैं और खा जाते हैं, हम अपने बच्चों पर खर्च करते हैं, उसी तरह से हम अपने बच्चियों का जो है मतलब ये जी मैं बस खत्म कर रहा हूँ, एक मिनट में मैं खत्म कर रहा हूँ। जिस तरह से जो है मतलब सदक़तुल फितर हम अपने गांव में खा लेते हैं, उसी तरह से जो है मतलब अपने बच्चियों की विरासत को खा जाते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन के यहाँ हमको इसका जवाब देना पड़ेगा। लिहाजा हम तमाम उलमाओं से ये गुजारिश करते हैं कि हलफ उठाने के साथ साथ ये विरासत और ये जहेज जैसी लानत को खत्म करने का जो है मतलब इत्तेफाक, इस पर मुत्तफिक हो जाए और गांव मुआशरा में हर जगह इस बात को जो है मतलब नाफिज करने की जो है मतलब कोशिश करें। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम तमाम आलिमों को सही दीन पर चलने की तौफीक अता फरमाए और हम तमाम मुसलमानों को जब खात्मा हो तो खात्मा बिल खैर हो। आमीन व आखिर दाना अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बहुत बहुत शुक्रिया कलाम साहब, अल्लाह को जज़ाए खैर दे। इंशाअल्लाह तबारक व तआला हफीजुर रहमान साहब ने जो कहा है उलमाए किराम की पहले हलफ बर्दारी हो जाए, इंशाअल्लाह उसके बाद हम पंच तक भी पहुंचेंगे, सेक्रेटरी खजांची तक, गाँवों के अंदर जो भी है उनके सदर सेक्रेटरी उन तक भी पहुंचेंगे, आवाम तक भी पहुंचने की कोशिश करेंगे। ये सब बात के मरहला है। पहले हम लोग अपने उलमाए किराम को पहले सही कर लें, या हम लोग हल्फ बर्दारी कर लें, हम लोग अपने अंदर वादा वाइद कर लें। असल में वक्त की गलत होती है, हम लोग टाइम देते हैं और बहुत ज़्यादा वक्त तो हो जाया करता है, हम लोग चाहते हैं कि टाइम से पहले ख़त्म कर दिया करें। तो मुझे लगता है कि सारे के सारे लोग अब ख़त्म हो चुके हैं और आखिर में हमारे शेख अब्दुल रहीम मदनी हफिज़हुल्लाह हैं जो सदारती कलिमात के साथ दुआ करते हैं और दुआ के बाद इस मजलिस का अख्ताम करते हैं। और आज भी ये स्टेज अब आपके हवाले, शेख अब्दुल रहीम मदनी हफिज़हुल्लाह। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व बाद। अल्हम्दुलिल्लाह, आज जहेज के ताल्लुक से बहुत सारी बातें आई हैं और बहुत सारी कीमती बातें थी, मुफीद भी है, लेकिन इसे अमली जामा पहनाना चाहिए। सबसे पहली चीज यहाँ पे मैं चंद खुलासा पेश करना चाहता हूँ या चंद नुकात पेश करना चाहता हूँ, और इस सिलसिले में यह है कि जहेज की जो रसूमात हैं, कोई भी चीज, कोई भी बिदात, कोई भी रसूमात उस वक्त जन्म लेती है जब इंसान सुन्नत को और शरीयत से दूर होता जाता है, छोड़ देता है। सबसे पहली चीज ये है कि शादी के मौका से हमें कौन सी सुन्नत हमने छोड़ दिया है, उस सुन्नत को अपनाएं तो रसूमात वगैरह खत्म होंगे। इस सिलसिले में दो चीजें हैं, एक तो बारात के ताल्लुक से बात हुई है और दूसरी जो है जहेज के ताल्लुक से। कुछ चीजें ऐसी है कि फिलफौर उसको आप बंद कर सकते हैं, उसका खात्मा किया जा सकता है, और कुछ चीजें ऐसी है कि उसके अंदर वक्त, जिद्दोजहद दरकार है और उसके अंदर मेहनत है ज्यादा।
वक्त लगेगा। जो चीज आप खत्म कर सकते हैं उसके अंदर जल्दी खत्म कर सकते हैं, उसमें तौर तरीका बदलने की जरूरत है। जैसे बारात आप खत्म करना चाहते हैं तो हम जितना भी चिल्लाएं, हो सकता है उसके अंदर सुधार हो जाए, लेकिन जब तक तौर तरीका नहीं बदलेंगे तो लोग बारात जाएंगे ही। और इस चीज को आप कम तो कर सकते हैं लेकिन बहुत टाइम लगेगा। लेकिन इसको आप जल्द खत्म करना चाहते हैं तो उसी चीज को अपनाइए। एक तो सुन्नत जो तरीका है, और वो चीज हमारे दरमियान भी किसी टाइम में और किसी वक्त में लोग करते हैं, वो ये है कि निकाह को पढ़ा देते हैं बहुत सारे लोग। जैसे वालिद ना हो घर पे, गार्जियन ना हो, तो कहते हैं कि बच्ची की निकाह कर दी जाए और आने के बाद शादी होगी या इस तरह से रुखसती होगी। तो अगर यही रसूम या यही चीज राज कर दें कि लड़की के तरफ से चंद अफराद आए लड़के के पास और निकाह हो जाए, और निकाह होने के बाद रुखसती के लिए सिर्फ दुल्हा और चंद अफराद, घर के चंद अफराद जाएं और रुखसती करा के ले आए, तो इसमें ना बारात की जरूरत है न किसी और चीज की जरूरत है। इस चीज को खत्म करना चाहते हैं तो इस तरह से भी खत्म किया जा सकता है। इस चीज को राज करें कि निकाह हो जाए, बात तय हो गई, लड़की के यहाँ लड़की वाले लड़के के यहाँ आए चंद अफराद को लेकर के, और वहां पे मस्जिद के अंदर निकाह हो जाए। जो सुन्नत तरीका है वहीं पे जो भी हो, जिस तरह से चंद लोग इकट्ठा होते हैं या नमाज के बाद हो, निकाह हो जाए। तो एक तो इस सिलसिले में ये कहना चाहता हूँ। दूसरी चीज, जहां तक जहेज की बात है तो बहुत सारी बातें आई हैं। जहेज के ताल्लुक से अगर उलमाए किराम हलफ ले लेते हैं तो क्या जहेज को रोक पाएंगे? इस सिलसिले में दो चीजें हैं। एक तो यह है सबसे पहली चीज कि सारे उलमाए किराम मुत्तफिक नहीं होंगे, सारे उलमाए किराम मुत्तफिक नहीं होंगे। जिनके पास बच्ची है वो सबसे पहले मुत्तफिक होंगे, और जिसके पास बच्चा है वो इस चीज के अंदर हाजिर नहीं होंगे, इस चीज के लिए तैयार नहीं होंगे। आप किस तरह इस पे इत्तेफाक कर सकते हैं? एक चीज तो ये है, और दूसरी चीज ये है कि आप सिर्फ जहेज ही का मसला क्यों जो है उठाते हैं कि जहेज खत्म कर दें तो, या हम कहेंगे या इसकी तहरीक चलाएंगे तो जहेज खत्म कर सकते हैं। जहेज के साथ जहेज के जो क्या कहते हैं दाइया है, यानी जो चीज जहेज की तरफ बुला रही है उस चीज को भी खत्म करना चाहिए। यानी विरासत को भी हम जोर दें जहेज के साथ साथ। कितने लोग मरे हैं, इंतकाल किए हैं, हमने उसके जायदाद को तकसीम किया है शरई हैसियत के मुताबिक? नहीं किया है। अगर ये लोड लोगों के ऊपर दें और उनकी जायदाद को तकसीम करें बच्ची और बच्चे के दरमियान, तो लोग खुद ही बोझ महसूस करेंगे कि हिस्सा हमको देना है, तो बच्ची की शादी में हम इतना खर्च क्यों करें, हमको तो हिस्सा देना ही पड़ेगा। लेकिन अगर इस चीज को राज नहीं करते हैं, इस पे खामोशी अख्तियार करते हैं कि हमारे पास सिर्फ बच्ची ही है, और या बच्चे कम हैं और बच्ची ज्यादा है, हमको प्रॉपर्टी नहीं देना है, या इस चीज से इस तरह से जो है नहीं लागू करना है, तो फिर इस चीज को खत्म कैसे कर सकते हैं? इंसाफ होना चाहिए, अदल होना चाहिए दोनों तरफ। किसी के पास बच्ची है तब भी जो है बच्ची के लिए जो है उसका हक मिलना चाहिए, किसी को बच्चा है उसका भी हक मिलना चाहिए। दोनों चीज को लागू करें। जहां पे लोग मर जाते हैं विरासत को नाफिज कीजिए, और इसी तरह से जहां पे क्या है कि जहेज का ये है उसके लिए भी आवाज उठाइए। ये दोनों चीज साथ साथ उठाएं, और उसके अंदर हम ये ना कहें कि एक पहलू को लेके चलें एक पहलू को छोड़ दें। ये भी पहलू बहुत जरूरी है, उसको खत्म करना चाहते हैं तो। इसी तरह से जहेज के बारे में उलमाए किराम भी तहरीक चलाएं, और सिर्फ जो है तकरीर करके नहीं, एक तहरीक हो और विरासत की भी तहरीक हो, और इस सिलसिले में गांव-गांव जो भी जिस तरह से भी है लोगों को बतलाएं
आज हमारी हालत ये है कि लोगों को माशा अल्लाह कहाँ पे कहेंगे नहीं पता, क्योंकि हम उलमाए कराम खुद ही इस्तेमाल नहीं करते हैं किसी चीज को देख करके। हमारी जुबान से क्या इस्लाम है लोगों को पता नहीं है। ये चीज भी जो है इस्लाम की कमी, तबलीग की कमी, जो लोगों को पता होना चाहिए, बहुत सारी चीजें पता नहीं है, जहालत पे तुले हुए हैं। नमाज है, दीन से लगाव है, बहुत सारे जो है अरकान है, बहुत सारे वाजिबात हैं। जब हम इन चीजों को भी जो है रखेंगे लोगों के सामने, इस चीज की तरफ माइल करेंगे, तो लोगों के दिल के अंदर खौफ पैदा होगा, डर पैदा होगा। जब इंसान जो है नमाज ही नहीं पढ़ता, अल्लाह का खौफी नहीं, जब मुसलमान हो करके दीनी शार का पाबंद नहीं है, तो सिर्फ आप जहेज को रोक करके कौन सी गोली मार देंगे और कौन सा वो जन्नती हो जाएगा अगर जहेज जो है रुक जाता है। और इस तरह से जो है लोग जहेज को जो है ठीक है नहीं देते और नमाज नहीं पढ़ते हैं। जरूरी है कि दीन के तरफ भी जो है तहरीक जो भी है, जमीयत अहले हदीस हो या कोई भी तहरीक हो, आप दीन के तरफ भी उसके लगाएं लोगों को, दावत व तबलीग के तरफ। हर मर्द, हर फर्द को कलमा याद हो, हर फर्द को नमाज की फर्जियत का इल्म हो, हर फर्द को इस्लामी शिआर का जो है के बारे में पता हो। इसी तरह से जो रस्म व रवाज है उसके बारे में, दीनी शिआर है उसके बारे में पता हो। तो इस पे भी जो है मेहनत करने की जरूरत है। और नहीं कर रहे, मैं नहीं कर रहा हूं, लेकिन ये चीज भी बुनियादी चीजें हैं, जो असासी चीजें हैं, उनको रखा जाए ताकि लोग जो है आसानी के साथ हमारी बात को तस्लीम करें और इस चीज को कबूल करें। तो बहुत सारी चीजें थी, लेकिन बहुत वक्त ज्यादा हो रहा है, इसलिए मैं इस पे ज्यादा नहीं चाहता हूं जो है ज्यादा ये करूं। बहरहाल बहुत सारे रास्ते हैं, उस पर मेहनत कर सकते हैं। शेख हफीजुर रहमान साहब ने भी जो है बहुत कहा, ठीक है अच्छी चीज है, लेकिन साथ साथ और जो भी मैंने जिस चीज की तरफ रहनुमाई की है उसको भी मद्देनजर रखें, और रखते हुए इस सब काम को एक साथ करेंगे तो इंशाअल्लाह ये जो है जो फसाद है, ये जो एक लानत है, उससे लोग रुक जाएंगे। अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमें सोचने समझने और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे लिए आसानी फरमा। अल्लाह रब्बुल आलमीन हर तरह की बिदात व खुराफात से हमें महफूज़ व मामून कर दे। जी किसी को कुछ कहना है? या जारी रखूं? रखिए, जारी रखिए। नहीं, बड़ी अच्छी बात है आपने कही है, लेकिन मसला ये है कि जिस मौजू के तहत हम लोग बात करते हैं ना, उसके ऊपर ज्यादा जोर दिया जाए और उस दिन वही बातें हो तो थोड़ा कुछ ये होगा। बाद में नमाज हो, रोजा हो, कुछ और चीज इसमें हम बात करेंगे ना तो मौजू थोड़ा सा हट जाता है। इसलिए जो है जो खास हो उसके मुतालिक हम क्या कर सकते हैं, वो हमारा असल बातें हमारी वो होनी चाहिए, मौजू के तहत हो, उसको हम क्या कर सकते हैं के तहत। ये सब मौजू ही के तहत है, ये मौजू से अलग नहीं है। अगर इंसान जो है मुसलमान ना हो, गैर मुस्लिम को कहेंगे कि जहेज रोक दो और उसके बाद जो है तुम जन्नत में चले जाओगे, तो उसको जो है जरूरी है कि सबसे पहले हम इस्लाम के बारे में बतलाएं। ये सब मौजू ही के तहत है कि हम जब जो है इंसान के अंदर इस्लाम होना तो बहुत सारी चीजों को हराम हलाल को समझेंगे वो, लेकिन आप हराम हलाल की बात करेंगे और दीन को अगर नहीं समझा है तो फिर जो है वो सोचेगा यार ये तो ऐसे ही है, चलो सारे लोग लेते हैं, तो क्या है, उसको जन्नत जहन्नम के बारे में पता नहीं। तो बहरहाल मैं ज्यादा इस पे कलाम नहीं किया हूँ, बस इशारा किया हूँ कि ये सब भी साथ साथ होना चाहिए। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला जी शेख, एक बात ये भी है कि अगर जहेज को रोकना है तो सबसे पहले वरासत का जो है ना मतलब कानून नाफिज किया जाए हमारे ख्याल से, तो इंशाल्लाह ये जहेज वाला बहुत मसला हल हो जाएगा ज्यादा से ज्यादा। मतलब पहले इसलिए बोला जाता है कि कलाम भाई और वरासत मिलने के बाद होता है, पहले नहीं होता है। सुनिए ना शेख, मैं जिंदगी पर चलती रहती है। मेरी बात मैं एक नुक्ता और पेश करना चाहता हूँ। कह रहे हैं कि जहेज जो क्या कहते हैं कि वरासत का मसला बाद में होता है, जहेज का जो है पहले होता है, यानी मतलब ये लेन देन का जो है वरासत का बाद में होता है, मरने के बाद। मैं ये यहाँ पे कहना चाहता हूँ कि जब बच्चों को जायदाद तकसीम करके देते हैं, अंशमंडा कराते हैं, तो बेटों का हक कहाँ से आ जाता है? मरा नहीं है तो कहाँ से तकसीम?
जी वही मैं बोल रहा हूँ, ये जब कहाँ से बेटों का हिस्सा हक जो तकसीम किया जाता है जिज्जत, उस बेटियों का भी बच्चों तो को हिस्सा निकाल देते दें। हैं, बच्चों को हिस्सा नहीं देते हैं। शेख एक ये कौन सा तरीका हफ्ते को इस्लामी तरीका है? अंशबंदाही का मौजू रखा जाए, उस पे भी मुझे बहुत सारे निकात कहने थे, लेकिन मैं आज नहीं शेयर किया हूँ। ये अंशबंदा के लिए अलग से एक जुमा को रखा जाए कि सही है गलत है, उसके फवायद क्या है, नुकसानात क्या है, शरई नजर में, शरीयत की नजर में क्या है। अलबत्ता मेरी शेख अब्दुल रहीम साहब ने जो कहा है बात बहुत अच्छी है, लेकिन हमारी बात में वो जो लाजिम मलजूम है, यानी जब भी हम जहेज के खिलाफ बोलेंगे वहाँ विरासत का मामला आएगा ही, वहाँ जो है दीनदारी और तकवा शियारी का जो है दर्श दिया ही जाएगा। लेकिन असल है कि पहले उलमा कदम उठाए और इसके खिलाफ जो है करेंगे तो ज़िम्नन सब बातें उसमें आएगी, लाजिम मलजूम है। जी 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 बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। मैंने इसीलिए कहा कि ये सब जो है, ये सब मौजू जो है एक साथ है, अलग अलग मौजू नहीं है, ये एक ही साथ है। विरासत का, जहेज का, ये सब जो है एक ही साथ है। कोई आप उसको अलग करना चाहेंगे तो नहीं हो सकता है। इसलिए कि बहुत सारे हमारे समाज के अंदर ये भी एक जो है, ये भी बीमारी है कि जो है जायदाद को तकसीम, बाप की जिंदगी ही में बेटे को तकसीम करके दे देते हैं और बेटी को नहीं देते हैं। तो क्या इस तरह हदिया नहीं दे सकते हैं? शादी के वक्त में हर बच्चे को हदिया नहीं दे सकते हैं? बच्ची को भी दे और बच्चे को भी दे, दोनों को दे। जमीन ही है, अगर वो मसला अलग है, हदिया वाला मसला अलग है ना। हदिया वाले के मसले पर किसी को बहस थोड़ी है, बहस तो यहाँ पे है जहेज। ये कह रहा हूँ कि जिस तरह अलग है तो बच्चों के लिए क्यों अलग किया जाता है, बच्चियों के लिए नहीं किया जाता है? वो हमारे हुकूमत की है कि बच्चियों हुकूमत को की नहीं किया जानिब जाता से है। जो चीजें हैं मसलम शुदा, वही चीजें हैं। हम और आप उसके ऊपर एक अलग बहस करें कि जो हमारे यहाँ जो बटा ये होता है, अंशबंडा जो होता है, उसके ऊपर इंशाल्लाह हम एक मौजू रखेंगे एक जुमे को, है ना। इसके ऊपर हम लोग बहस करेंगे कि सही है उसमें क्यों बेटी को नहीं तकसीम किया जाता, बेटी को भी उसमें तकसीम कर दिया जाए। नहीं करता तो उसको हम लोग करवाएं, दे हम लोग उसमें। हाँ हाँ, वही चीज कह रहा हूँ कि ये सब बात आनी चाहिए, ये सब बात आनी चाहिए। ठीक है, सारी बात को खत्म करके अब इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हम तमाम लोगों को मुत्तहिद रहने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन जिस तरह से भी हो हमारे दरमियान जो रुसूमात है, बिदअत और खुराफात है, अल्लाह रब्बुल आलमीन तमाम बुराइयों को अल्लाह रब्बुल आलमीन खात्मा कर दे। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम तमाम मुसलमानों को सही इस्लाम पहचानने और उसके मुआफिक अमल करने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे दिलों की इस्लाह फरमा। अल्लाह रब्बुल आलमीन तमाम मुसलमानों की परेशानियों को दूर कर दे। अल्लाह रब्बुल आलमीन जिस मर्ज के अंदर मुब्तला है, अल्लाह रब्बुल आलमीन उस वबा से हमें महफूज मामून कर दे। अल्लाह रब्बुल आलमीन जो हमें से गुजर गए हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन उसकी मग़फ़िरत फरमा। अल्लाह रब्बुल आलमीन उसके कब्रों को नूर से भर दे। अल्लाह रब्बुल आलमीन उसके वरसा को सब्र जमील अता फरमा। अल्लाह रब्बुल आलमीन तमाम मुसलमानों को अल्लाह रब्बुल आलमीन शिफाए कुल्ली अता फरमा। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे बच्चों की इस्लाह फरमा। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें इस्लाम के मुआफिक जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारा खात्मा हो तो ईमान और तौहीद के ऊपर हो। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। सुब्हानक रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मशाकिर हैं, सबका बहुत बहुत शुक्रिया। इसी तरह से आते रहें, इस प्रोग्राम को जो मुफीद बनाते रहें, कौम के लिए, मिल्लत के लिए, समाज के लिए, और हम सब मिलजुल करके कौम, मिल्लत और समाज की जो है खिदमत करते रहें। अल्लाह हम सब का हामी व नासिर हो और अल्लाह तबारक व तआला हम सबको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।